Yes, Karan, you can start. Good evening, everyone. Before we start to our session, I want my backend team to play our ICA motto song. य एष सुप्तेषु जाग्रति य एष सुप्तेषु जाग्रति कामं 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 कामपुरुषो पुरुषो निर्विमाणः निर्विमाणः तदेव शुक्रं तदेव शुक्रदब्रह्मा तदब्रह्मा तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकः शतः सर्वे तदूनात्यपि कश्चनान्यपि कश्चन एतद्वैता 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 एतद्वैता. Yes. Good evening, everyone. I am Karan Thakkar, a volunteer at WIRC Vikasa, and I'm delighted to welcome you all to another enriching session under our flagship series, Gyan Yagna, a space where curiosity meets clarity and learning goes beyond textbooks. Today, we are diving deep into a topic that's as fascinating as it is empowering. That is, fundamental analysis of capital markets. In a world where financial markets are influenced by countless variables, from economic indicators and corporate performances to geopolitical developments, fundamental analysis remains one of the most critical tools for making an informed investment decision. It helps us look beyond the noise of market volatility and focus on the true value of assets by examining financial statements, industry trends, economic conditions, and company performance. To guide us through this powerful topic, we are truly honored to have with us Mr. Tanmay Bhandari, a name that resonates with clarity, precision, and practical wisdom in the world of capital markets. But before we begin the session, let's take a moment to hear from the pillars behind this initiative. To begin the evening formally, I warmly invite our Vikasa chairman, Sir Jitendra C.A. Jitendra Saglani, the visionary behind this entire Gyan Yagna series, to share his welcome address. Yeah, thank you so much, Karan. The key pillar of at Vikasa, respected CA Ketan Sayya sir, the chairman of Western India Regional Council. Today's speaker, Mr. Tanmay Bhandari, who already had covered one session, which was the introduction to capital markets, and he's back today with the second session, which is on fundamental analysis. Team Vikasa, comprising of Ajinkya, rather Krish, Madhur, and the volunteers who are, wow, that is basically wings of Vikasa. So Ajinkya and Karan, and all my dear students, a warm welcome to everyone in this yet another session in the capital market series in the Gyan Yagna. And fundamental analysis is something which we as chartered accountants feel that it's very easy for us to do. But I tell you, friends, when it comes to investing, there are various ways to do it. And I'm sure today's speaker would be covering the top-down approach, the bottom-up approach, and all the different approaches that he actually uses in practical day-to-day life for shortlisting stocks investments. So friends, this would be another interesting and eye-opening session. And we actually are good at numbers, but just number crunching is not fundamental analysis. There are many ways to do it. And let's understand and appraise whatever would be shared by today's speaker.
So with these words and thanking everyone forward for yet another interesting session. Tomorrow we'll be concluding this series with a psychology, which actually with a session on psychology, and that would be a session by Mr. Aditya Khemani. So looking forward to seeing you all tomorrow. And with these words, I hand it over to Mr. Karan. Thank you so much, sir, for always setting such a thoughtful and an energizing tone for our events. Now, I would like to further elevate this learning experience and invite our WIRC chairman, CA Ketan Sayya sir, to address the audience and open today's session with wise words. Thank you. Thank you so much. The entire wings of Vikasa, beginning with, Madhur, Krish, Karan, everybody, Ajinkya, for the wonderful handling of all the session on the capital market. Respected learned speaker, Tanmay, I think, apart from all the session which we had, today's session is most important because no company which is not having fundamental can progress or can have the values in capital market. You may learn technical analysis, you may learn option trading, future trading, but unless any company is fundamentally sound, it is not worth investing into those companies. And that is the key of investment into the capital market. By investing into fundamentally good stock, people have created wealth. So this is, to my mind, this is most important session which today Tanmay is going to deal. And I'm sure with his experience, we all will be getting benefited out of this session. So once again, congratulating Vikasa for thinking through about this entire series on capital market. The Vikasa team led by our able chairman, Jitendra ji, and thank you all, everybody from Vikasa for working very, very hard on this all series on Gyan Yagna. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, sir, for such an insightful and a motivating message. Now comes the moment we all have been waiting for. To formally introduce our esteemed speaker for the evening, I now invite Ajinkya Dal, volunteer WIRC Vikasa, to take over and walk us through the inspiring journey of Tanmay Bhandari, sir. Good evening, everyone, the respected dignitaries, our speaker, and my dear fellow friends. I am Ajinkya Dalvi from Wings of Vikasa at WIRC Vikasa, introducing our esteemed guest, Mr. Tanmay Bhandari, for fundamental analysis. Tanmay sir is an experienced equity analyst for over past 6 years with having hands-on experience in capital markets. His core strength lies in sector rotation strategies and identifying opportunities in a growing economy. Beyond just trading, he identifies himself as a full-time learner and a part-time trader in the dynamic market landscape. Also, he has been actively engaging with CAs and investor communities in helping them to decode the crux of capital markets into simple and relatable terms. He really brings a unique blend of both technical and fundamental analysis, which is popularly known as techno-funda approach. So now I request Tanmay sir to guide us throughout the session. Hello, hi, good evening, everyone. This is Tanmay. Again, my second time on the session, and really excited with all the audience here. And as Ketan sir already mentioned, this session might be one of the most important session because whenever any kind of person, it's just not necessary to have a CA background or a economic background or any kind of finance background. If anyone is venturing into stock market, knowing the fundamentals, I guess, is the most important part, because if anyone trades into the market, if they are not looking at the fundamentals, we generally call it as a blind trading. So the blind trading never helps anyone in the market, because at the end of the day, it's all about how do you actually use the markets for your benefit in the longer run, right? So making sure that you use the right kind of fundamental tools, making sure that you pick the right kind of fundamental stock, is it's very important in the longer run,
because once you know how does the fundamental analysis work, trading, I wouldn't say trading, but investment is pretty much easy, right? Investment is very easy for you. You will know the investment aspects. And in today's session, I would try to cover many examples. With that, I would try to talk about the psychology part. With that, I will try to talk about the important things which are required in day-to-day trading aspects. So yeah, is my screen visible, Ajinkya? Yes, sir. Yeah. So okay. Yeah. So welcome to the fundamental analysis part. As we go ahead, the first and most important thing, right? And these things will no one will tell you कि जो fundamental analysis रहता है, it's a kind of a tool which completely works on your psychology first, and then your research. Why psychology? Because half of the time, many people, whenever they invest into the company, वो कंपनी में इसलिए इन्वेस्ट करते हैं बिकॉज उनके पड़ोसी ने बोला था या उनके फुफाजी ने बोला था, राइट? बट मेरे हिसाब से अगर आप खुद का रिसर्च करते हो कभी भी किसी कंपनी में, इन द लॉन्गर रन यू आर मोर कन्विंस कि मैं उस कंपनी में इन्वेस्टेड हूँ. अब जैसे थोड़े दिन पहले ही वन ऑफ माय फ्रेंड इन्वेस्टेड इनटू XYZ कंपनी, राइट? Now he invested into that XYZ company because he felt that the company valuations, the company value was pretty amazing. But he didn't saw this one important part, that the company, their main product and their main contract was taken by government, right? And once that contract was taken and technically the stock became weak, the stock is almost 50 to 60% down within the last 2 months frame. Now always knowing the fundamentals value is very important, because if you put the emotions into the trading part, if you put the emotions into the part where you are buying any kind of stock, this is the phase where you start to lose money. And as a person, as a student, when I started my trading career, many people they told me this part, that one thing is important, that Tanmay, you should always know which company you are investing into. मतलब कोई अगर आके मुझे पूछे कि तन्मय तेरी फेवरेट कंपनी कौन सी है, मैं सपोज बोलूँ टाटा पावर, मैंने टाटा पावर में अपना पैसा लगाया है, सो आई शुड नो द फंडामेंटल्स, हाउ व्हाट टाटा पावर इज डूइंग, what are the fundamentals behind Tata Power, what is the growth, what is the profit, what is the sales, because these things, trust me, they play very important role in the longer run to come. Because there are two kinds of people who invest money into stock market. The first kind of person is the person who is trading, right? They mainly tend to use the technical tools. We had some amazing sessions by speakers who talked about technical tools. But when I talk about fundamental analysis, it's kind of a tool which doesn't only work for 1 week, 1 month, but it works for the longer run. And when you talk about the multi-bagger stock, multi-bagger stocks, they generally come through the fundamental analysis you put in, right? Because right kind of fundamental analysis always helps you to have the multi-bagger rather than multi-bagger stock, right? You don't want to invest into a stock which literally turns into penny. So what is fundamental analysis? Fundamental analysis is a evaluation method in which you analyze the financial health, performance and future potential of a company. कंपनी कैसी है, प्रॉफिट कैसे है, सेल्स कैसा है, ग्रोथ कैसा है, कंपनी के प्रमोटर्स क्या बोल रहे हैं कंपनी के बारे में, ये सब चीजें जानना इंपॉर्टेंट है. बिकॉज कंपनी के प्रमोटर को ही खुद पे अगर भरोसा नहीं रहा, तो भाई कंपनी में इन्वेस्ट करके क्या फायदा है? तो अगर कंपनी के प्रमोटर को खुद पे भरोसा है कि मेरी कंपनी परफॉर्म कर सकती है, तो ऐसी काइंड ऑफ कंपनी ना लॉन्गर रन में हमेशा परफॉर्म करती है. मतलब वो कंपनी फिर 100 से 50 भी आने, तो वो गारंटी 50 से 150 200 जाएंगी. दिस इज अ गारंटी इफ द प्रमोटर्स हैव ट्रस्ट इन द कंपनी, दैट द परफॉर्मेंस विल बी गुड, एंड इफ दे रिवाइव देमसेल्फ. The goal of fundamental analysis is always to find good quality company, the value of the stock, if the value is undervalued, if it is overvalued, the main goal is that you should know what kind of stock you are betting on. Because many times I have seen people, those who invest into द रॉन्ग स्टॉक. मैंने बहुत बार लोगों से पूछा है कि यार तूने इस स्टॉक में पैसा क्यों लगाया. वो बोलता है कि यार मैंने बस देखा कि उसकी कोई न्यूज आई थी और मैंने न्यूज बेसिस पे इन्वेस्टमेंट कर लिया, या तो मैंने किसी से सुना था कि यार ये स्टॉक अच्छा है, तो मैंने वो चीज सुन के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर लिया. बट क्या आप कभी सोचते हो कि कंपनी क्या है, कंपनी क्या प्रोडक्ट सेल करती है, क्या कंपनी प्रॉफिट्स कमाती है, यानी क्या कंपनी का सेल्स डेटा अच्छा है, यानी
ये सब चीजें अगर आप नहीं जानोगे और अगर आप ब्लाइंडली इन्वेस्ट करोगे, सो यू विल मेक लॉस। एंड मेनी पीपल दे डू दिस पार्ट कि जहाँ पे उनके पोर्टफोलियो में 60, 70, 80% स्टॉक्स डाउन रहते हैं। एंड एज अ स्टूडेंट यहाँ पे द मैक्सिमम ऑडियंस आई एम गेसिंग might be student. See, I'm not a person who is very, very, very older to you, right? I'm a kind of a person who is just 25 years old. So one thing I can tell on my experience part is that, whenever you're learning, whenever you're into stock market, trust me, you have a lot of time to learn. You have, put so much time into your courses. You have put so much time into your degree. So one thing you can always do is learn about stock market. ये free की degree है, सिर्फ ये learning से आती है, because stock market में ना जर्नी जब शुरू होती है, तो इट ट्राइज टू ब्रेक यू मेनी टाइम इन फंडामेंटल एनालिसिस। जब अगर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट करते हो स्टॉक में, बहुत पेशेंस लेता है। मेरा दोस्त हमेशा एक चीज बोलता है कि यार तन्मय, मैं जिस भी स्टॉक में ना पैसा लगाता हूँ, वो स्टॉक क्या होता है, गिरने लग जाता है, और मैं जब भी उसको बेचता हूँ तो वो बढ़ने लगता है। अब आप सोचते होंगे कि यार ये कौन से काइंड ऑफ साइकोलॉजी है? ये वो वाली काइंड ऑफ साइकोलॉजी है कि जहाँ पे आप क्या करते हो, पेशेंस लूज करते हो। पेशेंस क्यों लूज करना है? अगर आपको कंपनी पे भरोसा है ना, लॉन्गर रन में ट्रस्ट मी वो आपको पैसा बना के देंगी। तो if the stock it is at a good value, you buy the company. But if the stock it is overpriced, if the fundamentals are not matching, then you avoid the company. And trust me, avoiding the company always helps. Second point, fundamental is equal to wealth. फंडामेंटल इज इक्वल टू वेल्थ, ये आपको कोई भी एनालिस्ट बोलेगा, कोई भी इन्वेस्टर बोलेगा। क्यों बोलेगा? बिकॉज अगर आपको खुद की वेल्थ जनरेट करनी है, 5% कमाओगे, 10% कमाओगे, ठीक है, ट्रेडिंग के लिए अच्छा है। बट इफ यू वांट टू हैव अ एक्चुअल मनी वेर यू जनरेट योर कैपिटल, वेर यू इंक्रीज योर वेल्थ, फंडामेंटल एनालिसिस करके आपको स्टॉक को लॉन्गर रन में होल्ड करना पड़ता है। फिर आप उसमें कंपनी के प्रॉफिट्स देखो, सेल्स देखो, कंपनी का डेटा देखो, वो जो हम आने वाले टॉपिक्स में देखने वाले हैं, ये सब चीजें देखो। तो अगर राकेश झुनझुनवाला जिन्होंने टाइटन में इन्वेस्टमेंट किया था, तो उन्होंने जब टाइटन में इन्वेस्टमेंट किया था, द वन थिंग ही डिड वाज ही सॉ द फ्यूचर, द पोटेंशियल अबाउट द कंपनी। आज के जमाने में मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, राइट? there are three kinds of market caps in India. Whenever you look at any kind of fundamental analysis, and just remember this part: the first is a mid cap company, the second is a small cap company, and the third is a large cap company. स्मॉल कैप कंपनीज को मैं जनरली कैटेगराइज करता हूँ कि जो 5,000 करोड़ के नीचे वाली जो कंपनी है, मैं उनको स्मॉल कैप में कैटेगराइज करता हूँ। 5,000 से 25,000 करोड़ वाली जो कंपनी है, मैं उनको कहीं ना कहीं मिड कैप में कैटेगराइज करता हूँ। एंड मोर देन जो 25,000 करोड़ वाली कंपनी रहती है, मैं उनको लार्ज कैप में कैटेगराइज करता हूँ। Now, why do I categorize this kind of company? मैं कैटेगरी वाइज क्यों इन्वेस्टमेंट करता हूँ? बिकॉज देखो, आने वाले 1 से 2 साल जो है, दे आर टोटली गोना बी फॉर स्मॉल कैप एंड मिड कैप सेगमेंट, राइट? India is a country where the market is growing at a very, very, very fast pace, right? You know, every alternate day, some other company is getting listed on stock market. We have more than 4 to 5,000 companies which are listed on the stock market. So you have, multiple companies. ऐसे नहीं है कि आपको वो एक ही कंपनी पे स्टक रहना है, राइट? वो एक कंपनी में स्टक रह के क्या मिलने वाला है? एक कंपनी पे स्टक रह के अगर किसी को गेन मिलेगा, तो यार वो गेन मतलब क्या ही काम का है यार, कि जहाँ पे आप पे 1 साल 2 साल होल्ड करो, 1 2 साल में आपको मुश्किल से 5 to 10% भी ना मिले, बिकॉज आपने रॉन्ग बेट किया। राइट? रॉन्ग बेट क्यों रहता है फंडामेंटल एनालिसिस में, राइट बेट क्या रहता है? बिकॉज सपोज इन द लास्ट 5 to 6 years बैक, आप किसी को भी पूछो, आप आपके भैया को पूछो, पापा को पूछो, एनीवन विल टेल यू कि लॉकडाउन के पहले आईटी यूज्ड टू बी बैकबोन। आईटी यूज्ड टू बी द स्पेस की जहाँ पे एवरीवन यूज्ड टू इन्वेस्ट। बट एवरीथिंग चेंज आफ्टर लॉकडाउन, राइट? लॉकडाउन आया, लॉकडाउन के समय मार्केट क्रैश किया। मार्केट जब क्रैश किया ना, यू नो आईटी का यूज था, आईटी का यूज एक पर्टिकुलर टाइम तक था, बट एक न्यू सेक्टर एमर्ज हुआ विच वाज द लीडर, राइट? दैट सेक्टर वाज बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर। पहले सब लोग है ना अपना पैसा आईटी पे लगाते थे, and कभी भी आईटी अगर क्रैश करता था ना, तो इंडियन मार्केट में वोलेटिलिटी क्रिएट होती थी। बट आज के जमाने में आप देखो, तो बैंकिंग एंड फाइनेंस मार्केट को बहुत बड़े लेवल पे लीड करता है। आप देखोगे पिछले 1 साल में आईटी सेक्टर hasn't परफॉर्म दैट मच, बट उसी समय आप देखोगे सबसे ज्यादा परफॉर्म करने वाला सेक्टर वॉज बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर। दे आर लीडिंग द इंडियन मार्केट। एंड इफ यू सी निफ्टी कंपोनेंट, निफ्टी 50 component, more than 40% of the component is filled with the banking and finance stock. Then rest component is lead by the oil and gas and the IT sector. So right kind of sector always helps you with fundamental analysis.
And why we use fundamental analysis? We use fundamental analysis कि मैं right decision बना सकूँ longer run में, कंपनी में इन्वेस्ट करना है, कितने टाइम तक इन्वेस्ट करना है, कंपनी की ग्रोथ सही है या नहीं। फिर मैं ब्लाइंड ट्रेडिंग ना करूँ। ब्लाइंड ट्रेडिंग की अगर हम बात करें तो वोडाफोन आइडिया इज दैट काइंड ऑफ कंपनी जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया अपना ना। One thing that people don't know about Vodafone Idea is that it's a kind of a company which has been struggling in the longer run, right? If you see, uh, uh, is my screen visible, Ajinkya? Yes, sir. Yeah. So if you see my screen, I've opened this website called as screener.in. Now, screener.in is going to be the most important website जो आप यूज करो डे टू डे बेसिस पे। फंडामेंटल एनालिसिस की जर्नी का अगर आपको शुरुआत करना है, देयर आर मल्टीपल टूल्स, सबके अपने अपने टूल है, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी है। One kind of tool which I But personally like to use is, yes. screener.com is not visible. The PPT Look, is visible there. look, just a second. Okay. Mhm. Yeah. Is it visible now? Yeah. Yeah. Yes. So अभी Yes, Himanshu. सबको मैं 2 मिनट का 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सबके सब लोग स्क्रीनर डॉट इन खोल लीजिए। now स्क्रीनर डॉट इन इज काइंड ऑफ अ टूल जहाँ पे आप स्टॉक्स फिल्टर कर सकते हो, जहाँ पे आप स्टॉक्स के बारे में डेटा जान सकते हो, जहाँ पे आप जान सकते हो कि कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस कैसा किया जाता है। एंड आई हैव बीन यूजिंग दिस टूल फॉर very longer run, so it's a very good tool. So everyone, okay. Now once if you have logged in into the Sinner.in, search for Vodafone Idea. Now, why Vodafone Idea is kind of a stock which I have been avoiding in the longer run? एक fundamental reason रहता है, between a good company and a bad company. Now, if you look at Vodafone Idea, now the market cap of the company is 80,000 crores, right? The company, uh, there are two things. First is the high, second is the low. 52-week high, 52-week low of any company. So the 52-week high of Vodafone Idea is almost 16.6, and currently it is trading 52 weeks low, that is of almost 7.37, and 52 week low है 6.29 का। almost 50 to 60% से ज्यादा वो अपने 52 वीक हाई से गिरा है ना। वन थिंग यहाँ पे देखना नेसेसरी है जब भी आप फंडामेंटल एनालिसिस करो किसी भी कंपनी का। सबसे पहले है कंपनी के बारे में जाके पढ़ो, कंपनी क्या कर रही है, क्यों कर रही है, कैसे कर रही है, व्हाट आर द सेगमेंट्स विच कंपनी इज इन्वेस्टिंग इनटू, प्रमोटर्स का होल्डिंग कितना है कंपनी में, व्हाट आर द काइंड ऑफ फंड्स दे हैव रेज। ये सब चीजें आप यहाँ पे पढ़ सकते हो अबाउट द कंपनी, बिकॉज you should always know about the company which you are investing into. Then the second and most important points are the market cap. Market cap हमने पहले भी बात करी है, 3 kinds of market cap है, small cap, large cap, mid cap. एंड एक और मार्केट कैप रहता है कि अगर 1000 करोड़ के नीचे वाली कंपनी रहती है तो हम उसको माइक्रो कैप में कैटेगराइज करते हैं। एंड वेन एवर यू इन्वेस्ट इनटू माइक्रो कैप कंपनीज, बी केयरफुल बिकॉज मैनिपुलेशन इज मोर इनटू दैट दोस काइंड ऑफ कंपनीज। अब जैसे ही मैं वोडाफोन आइडिया पे आ गया, यहाँ पे सबसे पहली चीज कभी भी आपको देखना है द पी रेशो। व्हाट इज पी रेशो? पी इज प्राइस टू अर्निंग रेशो। हाउ मच an investor is willing to pay for 1 rupees of the company's stock, right? That is your price to earning ratio. Now why price to earning ratio is important? Price to earning ratio is important because वो आपको बताता है, प्राइस टू अर्निंग जो वैल्यूएशन, प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो मैट्रिक रहता है वो आपको बताता है कि आपकी कंपनी फंडामेंटली कैसी है, अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है या फेयर वैल्यू है। इफ एनी कंपनी इट हैज अ वैल्यू वैल्यू ऑफ लेस देन 20 ऑफ पी रेशियो, देन यू माइट कॉल इज एट न्यूट्रल। ये बेसिक टर्म्स के लिए है, 20 से लेके अगर 50 के रेंज में है तो यू माइट कॉल इज एट न्यूट्रल, एंड अंडर वैल्यू 20 के नीचे, न्यूट्रल 20 से 50 के बीच में, एंड अगर मोर देन 60-70 है तो वी माइट कॉल इट ओवर वैल्यूड। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी। तो अब जैसे वोडाफोन आइडिया में मैं आ गया, वोडाफोन आइडिया में तो पी है ही नहीं। कमेंट सेक्शन में कोई गेस कर सकता है व्हाई वोडाफोन आइडिया डजंट हैव एनी पी? एनीवन? यस,
एकदम सही, एकदम सही आदित्य, एकदम सही शिवम, एकदम सही दीप, एकदम सही। क्या बात है यार, सबके सब होशियार है यार यहाँ पे। अरे क्या बात है पारुल जी, एकदम सही, एकदम सही अक्षत भाई, एकदम सही। नाउ अगेन सबको मालूम है वोडाफोन आइडिया इट इज अ लॉस मेकिंग कंपनी एंड ईपीएस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। earning per share and what is price to earning ratio? Price to earning ratio is how much a company earns per share. earning per share है ही नहीं कंपनी में। अगर कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा रही है, कंपनी अगर लॉसेस कर रही है, कंपनी का पी रेशियो एक्सेस करेगा ही नहीं। यहाँ पे नीचे आ जाइए आप, नीचे आ जाइए। इसको हम बोलते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स। क्वार्टर रिजल्ट्स दो टाइप के हैं। पहला है क्यू ओ क्यू, क्वार्टर ऑन क्वार्टर। साल में 4 क्वार्टर रहते हैं, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर। हर क्वार्टर में सेबी बोलती है कि एनी कंपनी, कंपनी को अपने रिजल्ट्स के बारे में बताना पड़ता है। कंपनी के जो सीईओज रहते हैं, एमडीज रहते हैं, वो आते हैं, वो बोलते हैं कि हाउ द कंपनी इज परफॉर्मिंग। जर्नलिस्ट को बोलते हैं, इन्वेस्टर्स को बोलते हैं हाउ द ग्रोथ इज हैपनिंग इन द कंपनी। एंड अगर वो जो भी कॉन कॉल रहता है, कॉन कॉल में इफ प्रमोटर इज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द कंपनी, राइट, एंड सभी का रूल क्या कहता है कि अ प्रमोटर, अ कंपनी नीड्स टू बी वेरी ओपन। उनको पूरा डेटा पब्लिक को देना पड़ता है, बिकॉज इफ यूर अ लिस्टेड कंपनी यू आर लाइबल टू। सो जब भी कॉन कॉल में अगर कंपनी के फंडामेंटल्स अगर अच्छे आते हैं, ग्रोथ अगर अच्छी रहती है, प्रमोटर्स अगर अच्छी बात करते हैं, या जो भी सीईओ सीएम अगर अच्छी बात करते हैं, इट इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग। बट अगर वो बोल रहे हैं कि द कंपनी इज फेसिंग सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, तो समवेयर दैट इज अ राइट, बिकॉज उनका कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। मैंने सबसे पहले ही बोला कि प्रमोटर्स का कॉन्फिडेंस अगर नहीं रहा कंपनी में, तो यार कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके क्या फायदा। मेरी कंपनी रही, मैं, मेरे को मेरी कंपनी में कॉन्फिडेंस नहीं, क्या ही फायदा है मेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके, राइट। बट अगर मेरे को मेरे कंपनी में बहुत कॉन्फिडेंस है कि मैं बोल रहा हूँ कि मेरे प्लान्स बहुत अच्छे हैं, मेरी ग्रोथ बहुत अच्छी है, मेरा प्रॉफिट बहुत अच्छा है, तो देन दैट कंपनी इज वेरी इन्वेस्टेबल कंपनी। एंड ऐसे बार आपको एक चीज इंपॉर्टेंट रखनी है कि कभी भी कोई भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो ना, सबसे पहले आओ सेल्स देखो, हाउ द कंपनी इज डूइंग सेल्स। क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स में इंप्रूवमेंट होना चाहिए। अब दो टाइप्स के रहते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एक रहता है कि जहाँ पे कंपनी का ग्रोथ एवरी क्वार्टर में होता है या एवरी अल्टरनेट क्वार्टर में होता है। सेकंड रहता है जिसको हम साइक्लिक चेंज बोलते हैं। साइक्लिक चेंज का एग्जांपल मैं आपको आगे बताऊंगा, हाउ डज अ साइक्लिक चेंज वर्क। सबसे पहले वोडाफोन आइडिया में आप देख लो, द कंपनी इट हैजंट इम्प्रूव इट्स सेल्स दैट मच इन द लास्ट फ्यू इयर्स। इसका सेल्स वैसे के वैसे ही है, ज्यादा कुछ खास इंप्रूव हुआ नहीं है। व्हाई इट हैज नॉट इम्प्रूव? एक चीज याद रखो, देयर वाज दिस वन कंपनी जो 2015-16 में आई थी। उसने क्या किया, उसने आते से पूरे मार्केट को है ना डिस्टर्ब कर दिया ना। व्हाट इज, यस भाई एकदम सही बोला, द नेम ऑफ दैट कंपनी वाज जियो। जियो ने आया, जियो ने पूरे मार्केट को क्या कर दिया, एकदम डिस्टर्ब कर दिया। एंड जियो यूज दिस स्ट्रेटेजी कॉल्ड एज चीप प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। तो बोलोगे तन्मय चीप प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या है? चीप प्राइसिंग स्ट्रेटेजी मतलब रहता है कि पहले आओ, सस्ते में दाम दो, मार्केट को तोड़ो, खुद की मोनोपोली क्रिएट करो। पहले वोडाफोन आइडिया मेजर प्लेयर था। आपको अगर याद होगा तो हम स्क्रैच कार्ड्स का यूज करते थे टॉप अप करने के लिए। बट फिर उसके बाद जियो आया, जियो ने ऐसे रेट्स दिए, पहले तो फ्री इंटरनेट दिया। फ्री इंटरनेट देने के बाद उसने जो प्राइजेस बहुत कम रखे, 1,000 रुपए रखा, फिर 2,000 किया, फिर 3,000 किया, एंड सबका मार्केट खत्म किया उन्होंने। यूनिनॉर, टेलीनॉर, वोडाफोन आइडिया, द वन कंपनी दैट सर्वाइव वाज भारती एयरटेल, बिकॉज उन्होंने खुद की मार्केटिंग ऐसे करी कि क्वालिटी मैटर्स मोस्ट, राइट। सो भारती एयरटेल सर्वाइव द कॉम्पिटिशन, बट ऑल द कंपनीज दे डजंट एग्जिस्ट नो मोर। लाइक डोकोमो ले लो, वोडाफोन आइडिया भी मर्ज हो गई है, बीएसएनएल का धीरे धीरे रिवाइवल हो रहा है। सो एयरसेल भी एक कंपनी थी। तो इसमें आप देखो कि फंडामेंटली वोडाफोन आइडिया डिडंट हैड एनी ग्रोथ। स्टॉक ग्रो करने का तो कोई सेंस नहीं बनता है। And सबसे इंपॉर्टेंट है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या है। कभी भी फंडामेंटल एनालिसिस करो, नेट प्रॉफिट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, या कंपनी लॉसेस से प्रॉफिट में आ रही है या नहीं। एंड कंपनी देखो 2022 से उसके क्वार्टर्स देखो, कंपनी कंटिन्यूअसली लॉसेस में ही है। ऐसा एक भी पॉइंट नहीं है कि जहाँ पे कंपनी प्रॉफिट में आई है। कंपनी नॉन स्टॉप लॉसेस करते जा रही है। कभी उसके लॉसेस थोड़े से कम होते हैं, तो कभी उसके लॉसेस बढ़ जाते हैं। तो मुझे आप बोलो कि अगर एक कंपनी नॉन स्टॉप अगर लॉसेस करे, व्हाट सेंस डज इट मेक कि आप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो। चलो आप बोलो कि नहीं तन्मय, कंपनी का बहुत अंडर वैल्यूड प्राइस है। अरे नीचे आ जाओ, नीचे आने के बाद एक चीज देखो। एक तो कंपनी ने पिछले 4 से 5 साल में सेल्स तो इम्प्रूव किया नहीं है, सेल्स तो उसका नीचे की तरफ ही गया है। उसी के साथ साथ देखो कंपनी के
लेकिन लॉसेस मार्जिनली कम हुए। तो कंपनी साल में 25,000 करोड़, 28,000 करोड़, 30,000 करोड़ के लॉसेस करता है। मतलब फन फैक्ट है कि वोडाफोन आइडिया ने पिछले 2-3 साल में जितने लॉसेस किए, दैट इज द ओवरऑल ऑलमोस्ट मार्केट कैप ऑफ वोडाफोन आइडिया। ना आप सोच रहे होंगे कि तन्मय इतना बड़ा लॉस करने के बाद भी वो कंपनी कैसे सरवाइव कर रहा है। तो एक और चीज रहती है, दिस इज कॉल्ड एज द शेयर होल्डिंग पैटर्न। नाउ शेयर होल्डिंग पैटर्न क्यों इंपॉर्टेंट रहती है फंडामेंटल एनालिसिस में? तो शेयर होल्डिंग पैटर्न हमको बताता है कि एक प्रमोटर को खुद के कंपनी पे कितना कन्विक्शन है। एंड इफ अ प्रमोटर डजंट हैव अ कन्विक्शन ऑन देयर ओन कंपनी, डजंट मेक एनी सेंस, राइट? बिकॉज कभी भी कोई भी कंपनी रहने दो, अगर प्रमोटर को उसके कंपनी पे कन्विक्शन है, तो लॉन्ग रन में वो कंपनी क्या कर सकती है? अच्छा गेन्स दे सकती है। बट अगर प्रमोटर को एक खुद की कंपनी पे अगर ट्रस्ट ही नहीं है, एंड अगर वो खुद की कंपनी में उसका स्टेक कम करते जा रहा है, दिस इज अ रेड साइन, दिस इज अ रेड फ्लैग साइन। देखो वोडाफोन आइडियाज में नॉन स्टॉप प्रमोटर्स अपना स्टेक फ्लोट कर रहे हैं। अब आप बोलोगे कि तन्मय ऐसे नहीं है, प्रमोटर्स ने ना गवर्नमेंट को दिया है। अरे गवर्नमेंट को क्यों दिया है? बिकॉज टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज में ना एजीआर राइट्स रहते हैं, जहाँ पे उनको सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है कि वो गवर्नमेंट से राइट्स लेते हैं नेटवर्क एंड टावर्स का। अब उनपे इतना बड़ा ड्यू है कि आज उनके खुद के कंपनी में, वोडाफोन आइडिया जो दो कंपनीज है, उनकी खुद की कंपनी में गवर्नमेंट ओन्स द बिगेस्ट स्टेक, दैट इज 49%। बिकॉज गवर्नमेंट को उनको जो एजीआर ड्यूज देने हैं, दैट आर सो बिग कि गवर्नमेंट बोला कि भाई तू पैसा तो देने नहीं वाला है, हमको मालूम है कि तू एक ना एक पॉइंट पे बैंकरप्ट होने वाला है। सो व्हाट गवर्नमेंट हैज डन इज, गवर्नमेंट हैज अ मेजोरिटी स्टेक इन वोडाफोन आइडिया, कि किसी दिन वो बैंकरप्सी फाइल वाइल करने की नौबत आ जाए तो दे ऑलरेडी हैव अ मेजोरिटी स्टेक। अब आप देखो प्रमोटर की होल्डिंग कम होते जा रही है, उसके साथ साथ आप फॉरेन इन्वेस्टर्स की होल्डिंग देखो, फॉरेन इन्वेस्टर्स की होल्डिंग भी कम 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 होते जा रही है, राइट? सो इट डजंट मेक एनी सेंस, डीआईज ने भी अपना स्टेक ओवर द लास्ट 4 to 5 क्वार्टर्स कम किया है। सो अगर एक ऐसी कंपनी जहाँ पे प्रमोटर को ही अपने कंपनी पे ट्रस्ट नहीं है, प्रमोटर इज सेलिंग इट्स स्टेक, and government is getting its stake because government knows the company is on the verge of bankruptcy, the only thing that is holding Vodafone Idea at this point is government itself। तो ऐसे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना कभी सेंस नहीं बनता। बिकॉज मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि मैंने पहले सेशन में भी बोला था, आज के सेशन में भी बोलूंगा, कि अगर एक 10 रुपए का स्टॉक है, 10 रुपए का स्टॉक अगर 5 रुपए पे आ गया, अब आपने तो इन्वेस्टमेंट कर लिया बिकॉज आपको 10 रुपए पे सस्ता लगा। 10 रुपए का स्टॉक अगर 5 रुपए पे आ गया तो 50% फॉल हो गया। 5 रुपए का स्टॉक अगर ढाई पे आ गया तो 50% फॉल हो गया। अब ढाई से 5 रुपए पे जाने के लिए उसको 100% की ग्रोथ चाहिए, और 5 से फिर से 10 पे आने के लिए उसको 100% की ग्रोथ चाहिए। एंड द रीजन वाई वोडाफोन आइडिया नॉन स्टॉप वो वोलेटाइल रहता है, कि कभी अचानक से 10-15% बढ़ता है, फिर से 20-30% गिरता है, बिकॉज रिसेंट में उसने एफपीओ भी किया था। नाउ देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एनी इन्वेस्टर्स रेज इन स्टॉक मार्केट। द फर्स्ट इज कॉल्ड एज एफपीओ। एफपीओ मतलब क्या रहता है? फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, कि एक बार आईपीओ आ गया किसी कंपनी का, आईपीओ इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, तो उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है एफपीओ। एफपीओ में भी सेम प्रोसेस रहता है एज आईपीओ, की कंपनी नए शेयर्स डाइल्यूट करती है अपने एग्जिस्टिंग होल्डिंग को, एंड नए शेयर्स इंट्रोड्यूस करती है, एंड उसमें रिटेलर्स अप्लाई कर सकते हैं, उसमें इंस्टीट्यूशन अप्लाई कर सकते हैं। बट सी एफपीओ का प्रॉब्लम क्या है ना, उससे डाइल्यूशन होता है कंपनी के शेयर्स का, विच इज नेवर गुड फॉर एनी काइंड ऑफ कंपनी, एंड रेयरली एनी काइंड ऑफ कंपनीज है ना एफपीओ के साथ आती है। तो एफपीओ अच्छा नहीं रहता है। वोडाफोन आइडिया ने एफपीओ किया था लास्ट ईयर, उसकी वजह से प्रमोटर्स ने अपना स्टेक भी डाइल्यूट किया था, उन्होंने फंड्स रेज किया था, बट फंड रेज करने का क्या फायदा हुआ? वो फिर से लॉसेस में ही जाने वाली है, उसका ग्रोथ हो नहीं रहा है। एंड कभी भी आप किसी भी प्रकार का फंडामेंटल एनालिसिस करो, the most important thing in fundamental analysis is the consumer psychology। Now, what is consumer psychology? Consumer psychology का मतलब रहता है कि अगर आप किसी प्रोडक्ट को यूज कर रहे हो, सपोज मैं किसी शैम्पू को यूज कर रहा हूँ, मैं किसी डेयरी प्रोडक्ट को यूज कर रहा हूँ, अगर मुझे वो प्रोडक्ट क्वालिटी लगता है, मुझे मालूम है कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट का इंड्योरेंस बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट की प्राइसिंग बहुत अच्छी है, उस कंपनी में मैं ट्रस्ट करता हूँ, मैं उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। बट अगर एक ऐसी कंपनी जिसको आप देख रहे हो कि जिसका मार्केट में डिक्लाइन है, जो कंपनी का ग्रोथ नहीं है मार्केट में, ऐसे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके कभी सेंस नहीं बनता है, अनटिल अनलेस इट टर्न अराउंड इटसेल्फ। ना यू विल बी लाइक कि तन्मय गिव मी अ गुड एग्जांपल। हमने वोडाफोन आइडिया का देखा कि व्हाई, व्हाट इज द रीजन कि व्हाई वोडाफोन आइडिया इज अ फंडामेंटली बैड कंपनी? promoter holding is very bad. First of all, the promoter holding is very bad. The depth of the company, it's very high. If you come to the year on year growth, ये ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है कंपनी का, कि हर साल कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है। कंपनी का सेल्स देखो पिछले 4-5 साल में बिल्कुल इंप्रूव नहीं हुआ है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट
है, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद जब नेट प्रॉफिट आता है तो वो लॉसेस में इसीलिए आता है बिकॉज उसको टैक्सेस में एंड ओवरऑल जो गवर्नमेंट की ड्यूज में जो पैसा देना रहता है वहां पे उसके डेप्थ में पैसा बहुत चले जाता है, तो इसीलिए वो कंपनी लॉस में है। एंड ओवरऑल उसका ग्रोथ बहुत स्लो है। एवरी मंथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इट कम अप्स विद रिपोर्ट की जहाँ पे वो रिलीज करता है डेटा कि किसके कितने सब्सक्राइबर्स बढ़े, जियो के कितने बड़े, एयरटेल के कितने बड़े, बीएसएनएल के कितने बड़े। उसमें एक ही कंपनी जो हर महीने सब्सक्राइबर्स लूज करती है वो है वोडाफोन आइडिया। तो फंडामेंटल एनालिसिस में आप देखो, पहले सबसे पहले देखो सिंपल टर्म्स के लिए सेल्स को देखो, प्रॉफिट को देखो, नेट प्रॉफिट को देखो कि कंपनी का नेट प्रॉफिट कैसे ग्रो कर रहा है या कैसे नीचे जा रहा है, एंड उसके बाद कंपनी के ईयर ऑन ईयर ग्रोथ पे देखो। बिकॉज अगर मैं कभी भी किसी भी कंपनी को जज कर रहा हूँ उसका ईयर ऑन ईयर ग्रोथ एंड उसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ बहुत मैटर करता है। अगर कंपनी क्वार्टर में भी ग्रो नहीं कर रही है एंड ईयर ऑन ईयर ग्रोथ में भी ग्रो नहीं कर रही है तो दो रीजन हो सकते हैं। एक तो है कि कंपनी का डिक्लाइन हो रहा है, दूसरा है कि कंपनी के कुछ टेम्पररी फैक्टर्स है, जैसे क्या सीजन नहीं हो सकता है, या तो उसकी फैक्ट्री में आग वाग लगी होंगी जिसकी वजह से टेम्पररी ऑपरेशंस रुके हुए हैं। ये रीजन है, वो फिर से कंपनी बाउंस बैक कर सकती है। बट वोडाफोन आइडिया जैसे कंपनी को उसके ओरिजिनल प्राइस पे आना बहुत मुश्किल है। मतलब अगर आप मुझे पूछो कि वोडाफोन आइडिया का ओरिजिनल प्राइस क्या था, तब मैं 5-10 साल का ग्राफ खोलो और आप देखो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया वंस वाज वैल्यूड at more than 120 रुपीज। एक्चुअली इसका डाइल्यूशन भी हुआ है बट इट वाज वैल्यूड एट 300-400 रुपीज। वहां से ये कंपनी इतनी ज्यादा गिरी है, राइट। वोडाफोन आइडिया का डिक्लाइन इतना ज्यादा फास्ट हुआ है। सो कभी भी याद रखो कि अब वोडाफोन आइडिया को यहाँ से एटलीस्ट 1000 गुना बढ़ना है जब जाके वो उसके ओरिजिनल मार्केट कैप, उसके ओरिजिनल शेयर प्राइस पे, विच इज वेरी टेक्निकली इम्पॉसिबल इन द मोमेंट। सो रिमेंबर, look at the profit, look at the sales, look at the company, and then only invest into the company. Now, the second kind of example which I will bring in front of you is a new age company, which when it started, it was a very fast growing company, and उसके product बहुत, उसका market share बहुत अच्छा था। It was one of the most promising startups in India. But slowly, मैंने क्या बोला है कि प्रोडक्ट साइकोलॉजी बहुत मैटर करती है। अगर प्रोडक्ट साइकोलॉजी अगर किसी भी कंपनी का अगर अच्छा नहीं रहा तो इट इज नेवर गुड। बिकॉज अगर प्रोडक्ट साइकोलॉजी में अगर मुझे मालूम है कि प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, प्रोडक्ट अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, तो यार उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके क्या समझ बनता है। एंड रीस लास्ट ईयर मेरे हिसाब से उसका स्टॉक लिस्ट हुआ था एट 60-70 रुपीज, वहां से वो 158 रुपीज तक गया था। एनीवन हु वांट्स टू गेस? कमेंट सेक्शन में हम रीड कर रहे हैं आपका। ना ना, पेटीएम नहीं है आदित्य भाई, पेटीएम तो नहीं है। मनोज सर, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कंपनी का अच्छा है बट टैक्सेस एंड डेब्ट्स में उसका पैसा चले जा रहा है ना। सुजलॉन बिल्कुल नहीं है। यस, ओला। ओला इज द नेम ऑफ द कंपनी। ओला का लास्ट ईयर जब ओला लिस्ट हुई थी स्टॉक मार्केट पे, एवरीवन अप्लाइड, इट गिव गुड लिस्टिंग गेन्स एंड 60 पे कुछ लिस्ट हुआ था, वहां से 158 तक गया था, अच्छा ग्रोथ दिया था। बट उतने ही जल्दी कंपनी का क्या हुआ, क्लाइन आया। आपको दिख रहा है यहाँ से, देखो डिक्लाइन कितने फास्ट आया कंपनी का, नीचे 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 जाते गए ना। एनीवन हु इज हियर अ यूजर ऑफ ओला, they might just know कि Ola is that kind of company ki, which is facing a lot of competition in terms of servicing, in terms of providing the right kind of quality to its customer, and that is the one reason why Ola has been falling very 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 much, right? And आप देखोगे ओला का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, ये सदित्य, ओला ऐसी कंपनी की जहाँ पे वो अप डाउन बहुत ज्यादा होते हैं। ओला का मार्केट कैप 18,000 करोड़ के पास है, एक पॉइंट पे ओला का मार्केट कैप 60,000 करोड़ 70,000 करोड़ के पास था। तो आप देख रहे हो इन्वेस्टर वेल्थ को टाइम नहीं लगता है यार गिरने को। मतलब अब अगर आप मार्केट में फंडामेंटल एनालिसिस करोगे ना, सबसे पहली चीज मैंने क्या बात करी, सबसे पहली चीज मैंने बात करी कि क्वार्टरली रिजल्ट आके देखो। अब क्वार्टरली रिजल्ट पे अगर जैसे हम आ जाएंगे, भाई ओला का सेल्स, एक तो सबसे पहली पार्ट है डिक्लाइनिंग स्टेज में है, देखो क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स नीचे जाते जा रहा है। एंड सबसे सेकंड एंड मोस्ट फनीएस्ट पार्ट ये है कंपनी में कि लास्ट क्वार्टर में द लॉसेस ऑफ द कंपनी वाज मोर देन द सेल्स ऑफ द कंपनी। एंड यू ओनली टेल मी कि आप मुझे बोल दो कि नहीं तन्मय, ओला इन द लॉन्ग रन इज अ गुड कंपनी, आई एग्री, बट इन द मोमेंट इट्स नॉट अ गुड कंपनी, राइट? बिकॉज ऐसी कंपनी जिसके लॉसेस are more than the sales of the company, what sense does it make, right? आप उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो। एंड फन पार्ट है, एवरी अदर डे ओला इज मेकिंग न्यू लोस। आप देखोगे इस मंथ ही ओला ने अपना न्यू लो बनाया था ऑलमोस्ट। अभी वहां से रिजल्ट्स आने के बाद थोड़ा बहुत बढ़ा है,
बिकॉज रिजल्ट्स में भी लोग क्या देख के ले रहे हैं कि अरे लास्ट क्वार्टर से उसका सेल्स बढ़ा है, अरे भाई सेल्स बढ़ा है ठीक है, बट कंपनी का लॉसेस देख रहे हो। एंड द थिंग इन द ओला इज इन्वेस्टर्स हैव इन्वेस्टेड थाउजेंड्स ऑफ करोड़ इन ओला, थाउजेंड्स ऑफ करोड़, 10-20 हजार करोड़ उन्होंने इन्वेस्ट किया होगा ओला में। बट आप देखो, जब हम ईयर ऑन ईयर डेटा पे आते हैं, ओला आज तक लॉसेस में ही है। पर आज तक उसने ऑलमोस्ट एंड ऑलमोस्ट 10-12 हजार करोड़ के तो लॉसेस कर लिए। अलग से इन्वेस्टमेंट भी 10 हजार करोड़ का होगा, लगभग 20 हजार करोड़ का तो इन्वेस्टमेंट है कंपनी में। तो 20 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट कब रिकवर होगा, जब तक कंपनी नेट प्रॉफिट में नहीं आएगी। एंड इसीलिए मैंने बोला ना कि नेट प्रॉफिट में आना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनटिल अनलेस अ कंपनी इज नेट प्रॉफिटेबल, यू नो, कंपनी डोंट टेंड टू मूव अ लॉट। बट कंपनी एक बार नेट प्रॉफिटेबल बनती है, वहां से उसकी ग्रोथ आना शुरू होती है। Now, in the recent time, there was this one more startup, you know, which had a very good bounce back. वो स्टार्टअप जब आया था, इट वाज एट अ वेरी ओवर वैल्यूएशन रेंज, वहां से वो बहुत गिरा, 60-70% गिरा। एंड ये स्टार्टअप है विच इज अ परफेक्ट एग्जांपल कि जहाँ पे ठीक है, अगर फेयर वैल्यू रही कंपनी की, कंपनी अगर प्रॉफिट्स में आता है तो टर्न अराउंड भी होता है। एटर्नल एटर्नल तो है, एटर्नल है, बट एटर्नल के सिवाय भी दूसरी कंपनी की विच वाज ओवर वैल्यूड, एटर्नल वाज नॉट ओवर वैल्यूड व्हेन इट गॉट लिस्टेड। यस, एनी गेसेस? अरे क्या बात है, आदिक भाई, आदित्य भाई, मनोज सर, वेरी गुड। द नेम ऑफ दैट कंपनी वाज पेटीएम। पेटीएम करो भाई, सबके जुबान पे था जब पेटीएम का आईपीओ आया था। बट वो जुबान से कंपनी बहुत जल्दी गई। रीजन? बिकॉज कंपनी का स्टॉक प्राइस बहुत क्रैश किया। नाउ रीजन, पेटीएम ने बाउंस कैसे किया एंड पेटीएम पहले स्टार्टिंग केस में फॉल क्यों करी? कभी भी किसी भी कंपनी में अप्लाई करते हो, ऑलवेज लुक एट द मार्केट कैप एंड द फेयर वैल्यू। अगर कंपनी का पी रेशो नहीं रहता है, कंपनी अगर लॉस मेकिंग रहती है, दो एक और दो चीजें यहाँ पे, ROCE एंड ROE। Now this two things are very important whenever you do fundamental analysis। ये इसीलिए important है। ROCE is return on capital employed, उसको लिखना है तो लिख लीजिए। एंड ROE is return on equity। ये दो है ना बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल टूल्स है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी ये बताता है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में कंपनी अपने खुद के फंड्स को, अपने डेब्ट्स को कैसे यूज कर रही है टू जनरेट द प्रॉफिट। एंड ROE मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी, कंपनी इन्वेस्टर्स के पैसे को कैसे यूज कर रही है, शेयर होल्डर्स के पैसे को कैसे यूज कर रही है टू जनरेट प्रॉफिट। जो ROCE रहता है वो एबिट रहता है, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, राइट। अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो रहता है वो आपकी कंपनी का रहता है ROCE। प्रॉफिट्स बिफोर टैक्स जो भी रहता है कंपनी का वो रहता है ROCE। एंड जो कंपनी का नेट प्रॉफिट रहता है दैट इज ROE, बिकॉज इन्वेस्टर्स का जो पैसा रहता है दैट इज आफ्टर द टैक्सेस। एंड इन्वेस्टर्स के पैसे का फाइलिंग होने के पहले, जो टैक्सेस की फाइलिंग होने के पहले का जो एबिट रहता है, वो कंपनी का ओवरऑल कैपिटल एम्प्लॉयड रहता है कि कंपनी अपने खुद के पैसे को कैसे जनरेट करी, प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। एंड ये दो टूल्स देखना इसीलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज जितना अच्छा कंपनी का ROCE रहता है, जितना अच्छा कंपनी का ROE रहता है, इट गिव्स अस अ कॉन्फिडेंस कि कंपनी लॉन्गर रन में परफॉर्म कर रही है। कभी भी याद रखो कि अगर कंपनी का 1000 करोड़ का सेल्स है एंड कंपनी अगर 1000 करोड़ के सेल्स पे एटलीस्ट 100 करोड़ का प्रॉफिट कमा रही है, 10% अराउंड कंपनी का क्या रहता है, ROCE रहता है। सो 10%, 15% किसी भी कंपनी का अगर ROCE रहता है, इट इज वेरी गुड फॉर द कंपनी इन द लॉन्ग रन, बिकॉज वो हमें कॉन्फिडेंस देती है कि कंपनी अच्छे मार्जिन इंप्रूव कर रहा है, कंपनी अच्छे प्रॉफिट्स कमा रहा है, एंड लॉन्गर रन में कंपनी सस्टेन कर सकती है। बट अगर कंपनी 1000 करोड़ का सेल्स कर रहा है एंड अगर 1-2 करोड़ का प्रॉफिट कमा रहा है, इट डजेंट मेक एनी सेंस, बिकॉज कंपनी के मार्जिन वुड बी 0.5% और लेस देन दैट। कंपनी सस्टेन कैसे करेंगे अगर इतना कम प्रॉफिट कमाएंगी? तो having good profit is always important. ROCE, ROE, return on capital employed. Return on capital employed is the earnings before interest and tax, and ROE is the net profit for the company. And both of these factors, they play a very important role because जो मार्जिन रहते हैं, मैंने पहले भी रिपीट किया कि मार्जिन कंपनी में अच्छे रहने इंपॉर्टेंट है। पेटीएम है ना, दो साल पहले जब पेटीएम का आईपीओ आया था, ATM गॉट लिस्टेड एट अ वेरी 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 हाई वैल्यू। एंड जब मैं पी रेशो की बात करता हूँ, पी रेशो दो टाइप के रहते हैं। एक बिफोर द आईपीओ, जब भी आईपीओ आता है, आईपीओ के समय जब भी कंपनी अपनी फाइलिंग करती है, तो एक पोस्ट पी रहता है कि प्री पी पी रहता है कि कंपनी की प्राइस टू अर्निंग वैल्यू कितनी है, कंपनी सही वैल्यू पे आ रहा है या नहीं। एंड पोस्ट आईपीओ जो रहता है, पोस्ट आईपीओ में कंपनी का
अपना नॉर्मल पी रहता है, जो अगर कंपनी लॉस मेकिंग रही तो ऑफकोर्स रिफ्लेक्ट नहीं होता है। तो वोडाफोन सॉरी पेटीएम का जब आईपीओ आया था ना, पेटीएम बहुत ओवर वैल्यूड प्राइस पे लिस्ट हुआ था, बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस पे लिस्ट हुआ था। मतलब आज पेटीएम माइट बी 70,000 करोड़ कंपनी, उस समय पेटीएम 2 लाख करोड़ की वैल्यूएशन पे खुद का आईपीओ ला रहा था। यस दी वेरी राइट। एंड द स्टॉक प्राइस वाज 2,100 and all. And everyone applied for the IPO. And मेरा एक दोस्त था, उसने भी आईपीओ अप्लाई किया। एंड आई टोल्ड हिम कि यार तूने आईपीओ अप्लाई क्यों किया, व्हाट सेंस डज इट मेक कि वो कंपनी, चलो 2 साल पहले के पॉइंट पे हम जाते हैं। 2 साल पहले के हम ईयर ऑन ईयर ग्रोथ पे आ जाओ कंपनी के, 2022 और 2023 के पास ले लो, कंपनी 2,400 करोड़ का घाटा कर रही थी। राइट। कंपनी 2023 में भी 1,800 करोड़ का घाटा कर रही थी। और इतना ज्यादा जो घाटा करने वाली कंपनी 2 लाख करोड़ के वैल्यूएशन पे आ रही है। पेटीएम जो सेक्टर में ना, उसको हम बोलते हैं फिनटेक सेक्टर। मल्टीपल काइंड ऑफ सेक्टर रहते हैं, कभी फिनटेक रहता है, आईटी रहता है, ऑटो रहता है। तो पेटीएम आ रही थी फिनटेक सेक्टर में। अब इंडिया में एक और कंपनी है जो है ना फिनटेक सेक्टर में, इसका नाम है बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व भी फिनटेक सेक्टर में इसकी वैल्यू कितनी है? 3,24,000 करोड़ है। अब यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे कंपनी का देखो, जब कंपनी 68,000 करोड़ का सेल्स करी है, उस पे 8,000 करोड़ कमा रही है। 2023 में देखो 82,000 करोड़ का सेल्स कर रही है एंड 12,000 करोड़ कमा रही है। एंड अगर मैं वही पेटीएम पे आ जाऊं, पेटीएम पे आ जाओ, फिर क्या सेंस बनता है कि कंपनी 2 लाख करोड़ के वैल्यूएशन पे आ रही थी? कोई सेंस नहीं बनता है। 8,000 करोड़ का सेल्स कर रही है एंड 1,800 करोड़ का लॉस कर रही है। तो इट डजेंट मेक एनी सेंस, राइट? बिकॉज अगर इतना लॉस कर रही है तो मैं क्यों अप्लाई करूंगा? एंड एज दीप भाई एडेड हियर इन द कमेंट सेक्शन कि यार उनके दोस्त ने अप्लाई किया था, तो मेरे क्या, मेरे तो बहुत दोस्तों ने अप्लाई किया था। मैंने बोला कि क्यों अप्लाई किया आईपीओ? बोला यार मैंने सुना कि कंपनी है ना अच्छी है, मैं तो हर दिन यूज करता हूँ मेरे ट्रांजेक्शन के लिए। मैं बोला भाई तेरे 20 रुपए के ट्रांजेक्शन के लिए तू आईपीओ अप्लाई करेगा? क्या वो लॉन्गर रन में कंपनी अगर एज लॉन्ग एज प्रॉफिट नहीं देती है, डजंट मेक एनी सेंस। बट ओवर द टाइम पेटीएम ने क्या किया ना, जब वो फेयर वैल्यू पे आ गई इसकी, जब वो 2100 से गिरते 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 1,500 पे आई, 1,500 से गिरते 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 1,000 पे आई, 1,000 से गिरते 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 350 तक आई, नहीं है जी 350 तक आई। 350 पे आने के बाद, 400 पे आने के बाद इट गॉट फेयर वैल्यू। क्यों? क्योंकि मैंने बोला है ना, मार्केट कैप क्या रहता है? मार्केट कैप इज द सेल्स, इट इज द वैल्यू, इट इज द ओवरऑल इन्वेंट्री ऑफ द कंपनी। एंड ये जो सब चीजें थी उसके हिसाब से भी मार्केट कैप एंड फेयर वैल्यू आती है कंपनी की। तो फेयर वैल्यू पे आ गए, वहां से कंपनी ने बाउंस किया। एंड पेटीएम की किस्मत इतनी खराब है कि उसकी वॉलेट सर्विस बंद की गई। वॉलेट सर्विस के साथ साथ उसके बैंकिंग जो सर्विस थी वो आरबीआई ने बैन किया उस पर। और इज द कंपनी वाज हैविंग अ गुड ग्रोथ, बट फाइनली इन दिस क्वार्टर द कंपनी इज नेट profitable again. The company has made good profits again, and it's a very huge achievement for the company कि कंपनी फाइनली फर्स्ट टाइम एवर पेटीएम नेट प्रॉफिट में आई है। अब मुझे ये मत बोलना कि तन्मय 2000 सितंबर 2024 में भी कंपनी नेट प्रॉफिट में थी। सितंबर 2024 में कंपनी नेट प्रॉफिट में इसीलिए थी बिकॉज कंपनी ने क्या किया था, उनका इनसाइडर प्लेटफॉर्म एटर्नल जो है जोमेटो, उसको बेचा था। एंड जोमेटो ने आज उस प्लेटफॉर्म का नाम किया है डिस्ट्रिक्ट। तो इसीलिए उसका नेट प्रॉफिट वन टाइम वहां पे था। यहाँ पे आपको एक और इनकम सोर्स दिखती है, दिस इज कॉल्ड एज अदर इनकम। अदर इनकम मतलब क्या रहती है ना, कि कंपनी अगर एक कंपनी है, अगर उसने उसका एक प्लांट बेचा, उसने उसकी एक लैंड बेची, उसने उसकी एक मशीनरी बेची, तो उससे वन टाइम जो एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होती है उसको हम फंडामेंटल टर्म्स में बोलते हैं अदर इनकम। तो कंपनी का वो अदर इनकम था, उसने 1,500 करोड़ में कुछ बेचा होगा एटर्नल को, एंड उसके बाद उसके लॉसेस के साथ अगर हम माइनस करें तो कंपनी ने उस क्वार्टर में 930 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था कुछ रफली। बट जब तक कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं थी, कंपनी इस क्वार्टर में पहली बार प्रॉफिटेबल बनी है, जहां पे उसका सेल्स भी इंप्रूव हुआ है, जहां पे उसके प्रॉफिट्स में भी आई है कंपनी। लुक एट द स्टॉक प्राइस, जैसे जैसे उसके लॉसेस कम हो रहे हैं, जैसे जैसे कंपनी प्रॉफिट्स में आ रही है, द स्टॉक इज गोइंग अप। ना ये चीज तो सही है कि कंपनी पहले नीचे थी। देखो 1 साल पहले कंपनी का प्राइस 400 450 था, 450 से आज कंपनी 1,100 के पास है। वेरी गुड रिटर्न इट हैज गिवन इन लास्ट 1 to 2 years। बट हाउ टू नो कि एक जो कंपनी है जो बहुत ज्यादा गिर चुकी है, हाउ टू अप्लाई दैट कंपनी? उसके लिए मैं अभी एक और स्टार्टअप वाली कंपनी थी जिसका अभी आईपीओ पेटीएम के साथ ही आया था। एनीवन हु वांट्स टू गेस? इट वाज अ कंपनी व्हिच वाज एट वेरी फेयर वैल्यूड प्राइस। नो, पेटीएम के साथ आया था, मैंने बोला पेटीएम के साथ किसका आईपीओ आया था?
नायका नहीं, कार्टरेड नहीं, पीडीएम के साथ, पीडीएम के आसपास आया था। अरे यार कैसे भूल गए आप लोग। अरे नहीं, बाईजूस का आईपीओ कहाँ है यार चिराग। बाईजूस तो डूब गई है यार कंपनी। सो आई विल टेल द नेम ऑफ दैट कंपनी वाज जोमेटो इटरनल। पीडीएम के आसपास ही उसका भी आईपीओ आया था, उससे 3-4 महीने पहले आया था। यस अग्रेश भाई, द नेम ऑफ द कंपनी वाज जोमेटो। जोमेटो का जब आईपीओ आया था, एवरीवन वाज एक्साइटेड, राइट? एवरीवन वाज एक्साइटेड टू गो फॉर द आईपीओ। मेनी पीपल अप्लाइड फॉर द आईपीओ। मतलब जोमेटो वाज द फर्स्ट काइंड ऑफ कंपनी जिसका मुझे लॉट भी लगा था। यहाँ पे बहुत लोग होंगे कि जिनको जोमेटो एज अ कंपनी मिली थी। हाँ, जोमेटो भी लॉस मेकिंग थी। अगेन चलो, अब जोमेटो का आज का जो नाम है वो एटर्नल है, ठीक है। तो पहला हमने एग्जांपल देखा ओला, पेटीएम, जो गंदी कंपनीज थी। बट अगेन पेटीएम अगर इंप्रूव हुई तो आज उसका स्टॉक प्राइस भी इंप्रूव हुआ है। बट एज अ प्रोडक्ट, यहाँ पे जो भी ओला यूज करता है, दे नो द कंज्यूमर साइकोलॉजी कि हाउ द प्रोडक्ट ऑफ ओला इज। सो ऑलवेज इन्वेस्ट इनटू दैट कंपनी वेयर प्रोडक्ट इज एक्चुअली गुड। डोंट इन्वेस्ट ब्लाइंडली इनटू द कंपनी जहाँ पे प्रॉफिट्स गंदे, सेल्स गंदे, सिर्फ नाम के लिए आप इन्वेस्ट करें। व्हेन वी कम टू एटर्नल, again, which was called as Zomato. This is a one kind of company which has grown a lot over the last few years. And the most important contribution to Zomato is कि Zomato पहले जब आया था, it was a food delivery company, right? It was a company which came at a valuation of 50 to 60,000 crores. Now, फंडामेंटल एनालिसिस करने आ जाओ मेरे भाई, राइट? फंडामेंटल एनालिसिस में जब करने आऊँ, तो पहले जब जोमेटो का आईपीओ आया था, द कंपनी वाज डूइंग अ सेल्स ऑफ 1600 करोड़ एंड कंपनी के लॉसेस थे 250 करोड़ में, राइट? कंपनी अच्छे खासे लॉसेस कर रहा था। बट उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एवरीथिंग चेंज। कंपनी स्टार्टेड टू इम्प्रूव इट्स फंडामेंटल्स। आप देखोगे ओवर द नेक्स्ट क्वार्टर कंपनी ने 1948 करोड़ का सेल्स किया। दो द लॉसेस इंक्रीज इन द क्वार्टर, बट सेल्स कंपनी का क्या हुआ? इंप्रूव हुआ। उसके आने वाले क्वार्टर में कंपनी ने 2000 करोड़ का सेल्स किया एंड 188 करोड़ का लॉस किया। Now, this was the point where everything started to change for Zomato. This was the point where the company was a turnaround company. कंपनी ने क्या किया? अपने फाइनेंशियल्स को completely turn around किया। And whenever a company turn around itself, it is a kind of a company which becomes investable in the longer run. Because अगर कोई भी कंपनी अपने फंडामेंटल्स को इम्प्रूव करता है, उसकी वैल्यूएशंस को इम्प्रूव करता है, तो वो कंपनी क्या बन जाती है? मल्टी बैगर कंपनी बन जाती है। बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने क्या बोला कि यार वो क्या करेंगे, जोमेटो में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, जोमेटो पेनी स्टॉक बन जाएगा, ठीक है। जोमेटो का जब आईपीओ आया था, अब कभी भी अगर किसी भी कंपनी का आईपीओ आता है, 5 रूल्स आप लोगों को याद रखना है। कभी भी कंपनी के रीजंस देखो, व्हाई द कंपनी इज रेजिंग द फंड्स। कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे है, कंपनी का ग्रोथ कैसा है, कंपनी का सेल्स कैसा है, कंपनी का नेट प्रॉफिट कैसा है, राइट? फिर सेकंड रीजन देखो, व्हाई द कंपनी इज रेजिंग द फंड्स, कि एक्सपांशन के लिए कर रहा है, मार्केटिंग के लिए कर रहा है, ग्रोथ के लिए कर रहा है, किस रीजन के लिए कंपनी फंड रेज कर रहा है। अगर कंपनी सिर्फ फंड्स इसलिए रेज कर रहा है, बिकॉज पेटीएम के समय है ना, आईपीओ के समय क्या हुआ था कि कंपनी जितना भी फंड्स रेज कर रहा था, 11-12 हजार करोड़, उसमें से 40-50% तो ठीक है वो कंपनी के डेब्ट्स चुकाने के लिए कर रहा था। बट मोर देन 50% इट वाज द ओ एफ एस। ओ एफ एस इज ऑफर फॉर सेल। कि अगर कभी भी किसी भी कंपनी में अगर प्रमोटर को कंपनी से निकलना है, तो वो क्या करते हैं? ऑफर फॉर सेल आईपीओ निकालते हैं। एंड ऑफर फॉर सेल इज अ काइंड ऑफ आईपीओ कि जहां पे प्रमोटर सेंस टू एग्जिट द कंपनी फॉर प्रॉफिट्स। अब दो टाइप का व्यू रहता है ऑफर फॉर सेल में भी। एक व्यू रहता है कि जहां पे अगर कोई भी प्रमोटर है, यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टर्स है, तो वो क्या करते हैं? अगर मेरे पास 100% स्टेक है कंपनी में, राइट? मेरे पास क्या है? मेरे पास 100% स्टेक है कंपनी में। अगर मुझे आईपीओ लाना है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाना है, तो मुझे थोड़ा स्टेक तो डाइल्यूट करना पड़ेगा ना मेरे भाई। तो इसी के इसलिए मैं क्या करूंगा कि मैं 80, मेरे पास 100% स्टेक है, उसमें से मैं 20% स्टेक को डाइल्यूट करूंगा। सपोज 100 करोड़ की कंपनी है, उसमें से 20 करोड़ का अगर मैं आईपीओ ला रहा हूँ, तो मैं 20% स्टेक डाइल्यूट करूंगा। तो दैट वुड बी अ कंप्लीट ओएफएस कंपनी, जहां पे आई हैव नो ऑप्शंस, बिकॉज मेरे पास 100% स्टेक है कंपनी में, और मुझे कुछ भी करके वो 20% स्टेक को डाइल्यूट करना पड़ेगा। एंड सेबी का रूल क्या क्या कहता है कि एट अ टाइम अ प्रोमोटर कांट होल्ड मोर देन 75% स्टेक इन टू द कंपनी। तो अगर सपोज मैंने 20% स्टेक मैंने डाइल्यूट भी किया थ्रू ओएफएस आईपीओ, एंड आई स्टिल रिटर्न 80% होल्डिंग इन टू द कंपनी, in the next 3 years, I have to dilute that remaining 5% stake again through OFS, offer for sale. तो ऑफर फॉर सेल दो टाइप की, एक है कि जहां पे अगर मेरे पास 100% होल्डिंग है,
तो मुझे जबरदस्ती 20% अपना बेचना ही पड़ेगा, बिकॉज दिस इज द वे कि कंपनी में न्यू शेयर होल्डर्स आएंगे। बट अगर मेरे पास कंपनी में ज्यादा स्टेक है भी नहीं, मेरे कंपनी का प्रॉफिट भी इतना अच्छा नहीं है, और तो भी मैं आईपीओ इसीलिए ला रहा हूँ बिकॉज मुझे बस प्रॉफिट बुकिंग करनी है, ऐसी कंपनी, ऐसा आईपीओ बिल्कुल अच्छा नहीं रहता है। तो पेटीएम के समय भी यही हुआ था कि पेटीएम केम अप विथ वेरी हाई वैल्यूएशंस, and the funds they were raising, that was for profit booking purpose and debt repayment purpose। अगर कंपनी खुद के प्रोडक्ट के लिए यूज कर रहा है, कंपनी खुद के ग्रोथ के लिए यूज कर रहा है, तो यार वो पॉजिटिव रहता है। बट अगर कंपनी आईपीओ इसीलिए ला रहा है बिकॉज उसको बस प्रॉफिट बुकिंग करना है, इट डजंट मेक एनी सेंस, बिकॉज फिर ऐसे कंपनी में मैं इन्वेस्टमेंट क्यों करूंगा, ऐसे कंपनी में मैं इन्वेस्टमेंट करके अपना पैसा क्यों लूज करूंगा। बिकॉज ओवर द टाइम ओला को देखो, ओवर द टाइम पेटीएम को देखो, both the companies are in negative only. Both the companies haven't given return to its investors in the longer run. So अब मैं जब जोमेटो की बात कर रहा हूँ, जोमेटो में देखो कंपनी ने अपने सेल्स को इम्प्रूव किया। पहले 2000 करोड़ का कंपनी सेल्स करा था, 188 करोड़ का लॉस करा था, वहां से कंपनी ने 2400 करोड़ का सेल्स किया, 2 करोड़ का प्रॉफिट किया, 2 करोड़ का प्रॉफिट किया। उसके आने वाले क्वार्टर में देखो, जैसे ही उसका आईपीओ आया, जोमेटो का आईपीओ 60 to 70 के प्राइस पे आया था, एंड उसने फंड्स इसीलिए रेज किया था बिकॉज उसने फंड्स रेज किया था फॉर ग्रोथ, फॉर मार्केटिंग एंड फॉर अक्वायरिंग दिस वन कंपनी कॉल्ड एज ब्लिंकिट। यस, यहाँ पे किसी ने तो एकदम सही आंसर दिया ब्लिंकिट का, कि उसने ब्लिंकिट के एक्विजिशंस के लिए क्या किया था, मेन फंड्स रेज किया था। ब्लिंकिट का एक्विजिशन उसने क्यों किया था, बिकॉज acquiring the right kind of product is always important in market। पहले जोमेटो सिर्फ फूड डिलीवरी कंपनी था, पहले जोमेटो क्या करता था, सिर्फ फूड डिलीवर करता था। बट लॉकडाउन के समय एक न्यू इंडस्ट्री एमर्ज हुई, लॉकडाउन के समय एक ऐसी इंडस्ट्री एमर्ज हुई कि जिसका बहुत बड़े लेवल पे ग्रोथ हुआ। तो वो जो इंडस्ट्री थी, दैट वाज द क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री। राइट, घर पे बैठे बैठे सबको भाई ग्रोसरी चाहिए था। राइट, घर पे बैठे बैठे सबको खाने की चीजें चाहिए थी, एफएमसीजी वाली चीजें चाहिए थी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर ड्यूरेबल्स चाहिए थे। एंड उस समय क्या हुआ, उस समय बहुत सारी कंपनीज मार्केट में एंटर करी, जेप्टो एंटर करी, स्विगी एंटर करी, रिलायंस एंटर करी। बहुत सारी कंपनीज ने क्या किया, मार्केट में इस प्रोडक्ट के साथ एंटर किया। एंड जोमेटो को भी लगा कि यार उन्होंने भी इस सेगमेंट में एंटर करना चाहिए। तो इसलिए जोमेटो ने क्या किया ना, जोमेटो ने फंड्स रेज किए आईपीओ में, एंड फंड्स रेज करने के बाद उन्होंने ब्लिंकिट को अक्वायर किया। जोमेटो ने बोला कि हम नया ऐप नहीं बनाएंगे, हम क्या करेंगे ना, एक एग्जिस्टिंग कंपनी को लेंगे, उसको अक्वायर करेंगे। एंड उस समय ब्लिंकिट है ना, एक डूबती कंपनी थी। ब्लिंकिट फाउंडर ही वाज स्ट्रगलिंग अ लॉट, एंड ही वाज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज कि जहाँ पे कंपनी को वो बैंक डिक्लेयर करने वाले थे। तो बट जोमेटो का जो फाउंडर दीपेंद्र गोयल थे, एंड बोथ ऑफ देम वर क्लासमेट्स, तो जोमेटो के फाउंडर ने उनको ऑफर दिया कि वी विल अक्वायर योर कंपनी, वी विल सेव योर कंपनी फ्रॉम बैंकरप्सी, एंड यू विल रन द कंपनी ऑन योर ओन। तो जोमेटो ने अपने डेटा को ब्लिंकिट के डेटा के साथ मर्ज किया, एंड जोमेटो ने क्या किया कि ब्लिंकिट को एज अ पार्ट ऑफ जोमेटो ग्रुप बनाया। नाउ द ग्रुप इज नोन एज एटर्नल। तो जैसे ही ब्लिंकिट जोमेटो का पार्ट बनी, ब्लिंकिट का उस समय मार्केट शेयर था 4%, एंड उन्होंने ब्लिंकिट को अक्वायर किया था $700 million में रफली। अब फन फैक्ट इज, आज के जमाने में ब्लिंकिट का रेवेन्यू इज मोर देन जोमेटो, सबको मालूम होगा ये फैक्ट। एंड उसके साथ साथ द वैल्यूएशन इज मोर देन जोमेटो। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एक्विजिशंस एवर डन इन इंडियन स्टार्टअप हिस्ट्री। राइट, बिकॉज जोमेटो से फूड डिलीवरी सर्विस थी, वहां से वो क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री में भी आ गई, और वहां से आज जो जोमेटो की मेन वैल्यू है, जोमेटो आज ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ की वैल्यूएशन पे। एंड अगेन सबके दिमाग में यही क्वेश्चन होगा कि तन्मय यार, इसका पी तो इतना ज्यादा है, तूने तो बोला कि 70-80 का पी रहा तो हाई वैल्यू होता है, बिकॉज यार इट्स अ वेरी हाई ग्रोइंग कंपनी। एंड लुक एट द स्टॉक प्राइस, इट इज एट ऑल टाइम हाई। रीजन ये ऑल टाइम हाई पे मैं ये भी बताता हूँ। तो जोमेटो हमने जैसी बात करी, तो जोमेटो का सेल्स इंप्रूव हुआ, ग्रोथ हुआ, एंड जोमेटो ने ब्लिंकिट का एक्विजिशन किया। अब फन फैक्ट, आज क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री में जो ब्लिंकिट है, ब्लिंकिट का मार्केट शेयर इज मोर देन 38%। दैट इज द बिगेस्ट स्टेक इन द होल क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री। बहुत तगड़ा कंपटीशन दे रहा है जोमेटो। तो जोमेटो का जैसी ग्रोथ हुआ, ब्लिंकिट का जैसी ग्रोथ हुआ, तो यार इन्होंने सोचा कि यार जो हमारे डे टू डे रेस्टोरेंट्स पार्टनर है, जो जोमेटो ऐप पे है, उनको भी यार फ्रेश ग्रोसरीज लगती होंगी हर दिन सुबह सुबह। सो व्हाई नॉट वी गिव देम फ्रेश ग्रोसरीज एट अ वेरी चीप प्राइस। एंड दे केम अप विद वन मोर स्टार्टअप दैट इज कॉल्ड एज हाइपर प्योर। हाइपर प्योर का काम था कि इन रेस्टोरेंट्स को वो इनके पार्टनर्स को हर दिन फ्रेश ग्रोसरीज दे एट अ वेरी चीपर प्राइस। एंड वहां से जोमेटो को और मार्केट एक्सपांशन हुआ, वहां से जोमेटो का और ग्रोथ हुआ। राइट, फिर जोमेटो की वैल्यू इंक्रीज होती गई, जोमेटो का सेल्स इंक्रीज होते गया, जोमेटो धीरे धीरे प्रॉफिट्स में आया। अब यहाँ पे देखो,
जोमेटो 2800 करोड़ का सेल्स किया, उसका प्रॉफिट देखो कितना बड़ा ग्रोथ हुआ। ऑफकोर्स स्टॉक प्राइस में भी ग्रोथ आएंगी। यहाँ से फिर उसका 3300 करोड़ का सेल्स हुआ, 140 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। वहां से 3400 करोड़ का सेल्स हुआ, 180 करोड़ के पास उसका प्रॉफिट हुआ। नाउ द फन फैक्ट इज कि उसके बाद जोमेटो ने क्या किया ना, 2024 में जोमेटो बोला कि यार हमारे ऐप पे, जोमेटो के ऐप पे लोग एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं, उनकी टारगेट ऑडियंस भी 20 to 35 के बीच की ऑडियंस है, इन लोगों को थोड़ी एंटरटेनमेंट लगता है, so why don't we enter into entertainment industry? And उस समय Zomato acquired this one company called as Insider, right? उन्होंने Insider को acquire किया, ये सत्य। उन्होंने क्या किया, Insider को खरीदा। किससे खरीदा? पेटीएम से खरीदा। पेटीएम ने भी Insider को खरीदा था 200 करोड़ में, एंड वही Insider पेटीएम ने Zomato को बेचा ऑलमोस्ट 1500-1600 करोड़ में। आज उसका नाम है लिस्टेड। धीरे 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 करते करते एक फूड डिलीवरी कंपनी क्विक कॉमर्स में एंटर करी। क्विक कॉमर्स की कंपनी हाइपर प्योर जो ग्रोसरी डिलीवरी थी पार्टनर स्टॉक्स में एंटर करी, एंड अब वो एंटरटेनमेंट में एंटर कर रही है। अब उसने क्या किया ना, स्विगी के एक ऐप में सब, उसने चारों ऐप्स को अलग अलग रखा, ये चारों ऐप्स को अलग अलग रन कर रहा है, एंड उन चारों कंपनीज को एक साथ आज बोला जाता है एटर्नल। इसीलिए जोमेटो की आज वैल्यू है 3 लाख करोड़। नाउ फन फैक्ट इज जोमेटो इज मोर वैल्यू देन योर बिग कंपनीज, एंड जोमेटो इज अ पार्ट ऑफ निफ्टी 50। निफ्टी 50 इज द टॉप 50 बिगेस्ट कंपनीज इन इंडिया। जब वो 40 रुपए पे कंपनी थी, उसका मार्केट कैप था 40,000 करोड़ के पास, 50,000 करोड़ के पास, बट आज वो चार कंपनीज है, राइट। एंड बड़े बड़े इन्वेस्टर्स राकेश झुनझुनवाला बोला कि यार आई वोंट टच दिस कंपनी, बट लुक एट द कंपनी, ऑल टाइम हाई। 40 रुपए पे आपने शेयर मिस किया, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 80 रुपए पे आपने शेयर मिस किया, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट लुक एट द सेल्स। 3,500 करोड़ का सेल हुआ, 180 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। 4,200 करोड़ का सेल्स हुआ, 250 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। कंपनी का 4,800 करोड़ का सेल हुआ, 5,400 करोड़ का, ना 7,000 करोड़ का एक क्वार्टर में सेल्स है। पहले जितना उसके पूरे साल में सेल्स हो रहा था, आज उसका एक क्वार्टर में सेल्स है। दो द प्रॉफिट इज डाउन ना। वाई इज द प्रॉफिट डाउन फॉर जोमेटो? बिकॉज इट्स अ हाई ग्रोइंग कंपनी। जितना भी उसका पैसा आता है, वो ब्लिंकिट के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए वो पैसा रिटर्न लगा दे रहा है, राइट। बिकॉज अगर एट दिस पॉइंट अगर वो ब्लिंकिट में पैसा नहीं लगाएगा, तो it have to face competition from big players like Reliance and Zepto and Swiggy. इनका तगड़ा competition है, इसीलिए it is investing back its money into the company only, but it is still being net profitable. Now उसका सेल्स देखो कितना इंप्रूव हुआ, एंड व्हेन आई कम टू द ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, फंडामेंटली 7,000 करोड़ सेल्स करने वाली कंपनी का आज ईयर ऑन ईयर सेल्स है 23,000 करोड़ के पास। लॉसेस वाली कंपनी का आज प्रॉफिट है 300 करोड़। देखो लास्ट ईयर तक 520 करोड़ था, बट ठीक है, कंपनी प्रॉफिट में। नाउ सी एट दिस पॉइंट द कंपनी इज वेरी ओवर वैल्यूड। एट दिस पॉइंट आई वोंट सजेस्ट कि एनीवन should vary into Zomato at this point. But again, why the growth happened? Because 40 रुपीज की कंपनी 80 पे गई, 80 की 160 पे गई, और 160 की कंपनी 300 रुपए पे आज। So at every point you could have invested in Zomato, because if you know a company is fundamentally good, it is always fundamentally good. You just need to trust the company. How is the growth in the company? How is the sales? How is the profit? And at the end of the day, आपको सही kind of company मिलती है। So this is a base where you know which is a bad company fundamentally, and fundamentally which is a good company. Okay, let's come to the next point. Okay, so types of fundamental analysis. There are two types of fundamental analysis. The first kind of fundamental analysis is the quantitative analysis, जहाँ पे हम revenues देखते हैं, profits देखते हैं, sales देखते हैं, जो अभी हमने देखा. Now the second kind of fundamental analysis, the qualitative analysis, जहाँ पे हम business को देखते हैं, management को देखते हैं और industry को देखते हैं. और वहां पे हमने कौन सी कंपनी देखी? वहां पे हमने bad side में देखा कि ओला as a business it is not performing. उसका मार्केट शेयर एक साल पहले 50% था, आज उसका मार्केट शेयर 15% है। बिग प्लेयर्स लाइक बजाज एंड टीवीएस ने उसका मार्केट शेयर एक्वायर कर लिया है, तो इसीलिए कि उसका स्टॉक प्राइस भी क्रैश कर रहा है। बट गुड फेज में हमने देखा कि जोमेटो जैसी कंपनी, जिसका सेल्स इंप्रूव हुआ, जिसका बिजनेस में एक बिजनेस से चार बिजनेस हो गए उसके आज, इसीलिए वो कंपनी फंडामेंटली अच्छा रिटर्न दिया है कंपनी ने। क्वांटिटेटिव में हमने बात किया कि रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स के बेसिस पे जब पेटीएम ओवर वैल्यूड कंपनी थी, वो 2100 से 300 तक आई, राइट। इट वाज अ बैड कंपनी, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द क्वांटिटेटिव एनालिसिस में गुड कंपनी, वी लुक एट अगेन जोमेटो ओनली, कि लुक एट जोमेटो हाउ डिड इट, उसके पहले लॉस में थे, उसका सेल्स कम था, वहां से सेल्स इंप्रूव हुआ, प्रॉफिट आया, तो एज द कंपनी प्रोग्रेस इटसेल्फ फ्रॉम अ 40 रुपीज कंपनी टू 310 रुपीज कंपनी। सो कभी भी आप कंपनी को देख रहे हो ना, ये दोनों एनालिसिस को यूज करो कि कंपनी कैसी है,
ग्रोथ कैसा है, बिजनेस मॉडल कैसा है, इंडस्ट्री में पोटेंशियल है या नहीं। बस क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री आज देखो, घर पे बैठे बैठे सब ऑर्डर करते हैं यार। क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री, जोमेटो की आदत सबको है, ब्लिंकिट की आदत सबको है, सबको घर बैठे बैठे खाना चाहिए, भले हम उसके लिए 10-20 रुपए ज्यादा दे दें। तो ऑलवेज नो व्हाट काइंड ऑफ कंपनी यू आर इन्वेस्टिंग एंड व्हाई आर यू इन्वेस्टिंग इनटू द कंपनी। Now, key elements of fundamental analysis: financial statement, balance sheet, income statement, cash flow statement, ratios, P ratio, ROE, ROCE, and company management, governance, and industry and economic trends. अब इसके लिए हम क्या करते हैं ना, we will look at one more good company, because always having the right kind of fundamental analysis helps you कि आप कौन से कंपनी में किस लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। ओके, जस्ट अ सेकंड। अब फिर से स्क्रीन डॉट इन पे आ जाइए। ओके, अब स्क्रीनर डॉट इन पे हम जैसे ही आ गए, स्क्रीनर डॉट इन पे अब मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू फाइंड अ गुड फंडामेंटल कंपनी। एंड स्क्रीनर डॉट इन इट्स अ वेरी गुड टूल जहाँ पे आपको कंपनीज के बारे में पता चल सकता है ना। आज मैं तो आपको प्रॉमिस करता हूँ बाय द एंड ऑफ द सेशन आप खुद से स्टॉक्स निकाल पाओगे। स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे आपको आएगा। तो यहाँ पे ना 2-3 सेक्शन। पहला सेक्शन है टूल सेक्शन, दूसरा सेक्शन है स्क्रीन सेक्शन, तीसरा सेक्शन है फीड सेक्शन। जब आप फीड सेक्शन में आओगे, फीड सेक्शन में 2-3 चीजें हैं। सबसे पहले मार्केट पर्ल्स। मार्केट पर्ल्स में आपको कंपनीज में आज कुछ अनाउंसमेंट हुई है, कंपनीज ने कोई अनाउंस किया है अबाउट देयर प्रोडक्ट, अबाउट देयर डिविडेंड्स, अबाउट देयर QIPs, SIPs, तो वो पूरा आपको यहाँ पे मिलता है डेटा। फिर यहाँ पे सबसे जो मेरा मेन एंड इम्पोर्टेंट टूल है कि मैंने पहले भी लास्ट हमने फर्स्ट सेशन में उस चीज के बारे में बात करी थी कि सेक्टर रोटेशन क्या रहता है। सेक्टर रोटेशन बेसिकली क्या रहता है ना कि 2025 एक ऐसा साल है कि जहाँ पे सेक्टर रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई सेक्टर रोटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट? बिकॉज अगर आप राइट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, आप पैसा नहीं कमाओगे। बट अगर आप राइट सेक्टर में अपना पैसा लगा रहे हो, तो यू हैव एवरी वे वेर यू कैन अर्न मनी। Now, how does sector rotation works? There are three ways that sector rotation works. First, government policy sector rotation. Second, uncalled sector rotation. And the third and final kind of sector rotation is the seasonal sector rotation. Seasonal sector rotation मतलब क्या? जैसे अभी बारिश का मौसम था, बारिश के मौसम में फर्टिलाइजर स्टॉक्स मूव किए, तो उसको हम बोलते हैं सीजनल सेक्टर रोटेशन। अनकॉल्ड सेक्टर रोटेशन मतलब जो बिन बुलाए मेहमान जैसे आ जाते हैं। बिन बुलाए मेहमान जैसे आते हैं मतलब कैसे? कि अभी इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, पूरे दुनिया के सामने जो इंडिया के डिफेंस स्टॉक्स थे वो रडार पे थे, इंडिया के जो प्रोडक्ट्स थे वो रडार पे थे। इसीलिए इंडिया एंड पाकिस्तान वॉर के समय जो डिफेंस स्टॉक्स थे बहुत ज्यादा बढ़े थे। तो वो बिन बुलाए मेहमान जैसे आ गया ना कि मार्केट नॉर्मल चालू था, एवरीथिंग वाज नॉर्मल, अचानक से वॉर वाला सिचुएशन क्रिएट हुआ, डिफेंस स्टॉक्स बढ़े। दैट इज कॉल्ड एज द अनकॉल्ड सेक्टर रोटेशन। एंड द फाइनल इज द गवर्नमेंट पॉलिसी सेक्टर रोटेशन की गवर्नमेंट की पॉलिसीज आती है। हर साल गवर्नमेंट बजट में भी पॉलिसीज लाता है, मेड इन इंडिया में भी पॉलिसीज लाता है। एंड अगेन उसके सिवा भी गवर्नमेंट सेक्टर्स के लिए पॉलिसी अनाउंस करता है कि टू व्हीलर सेक्टर के लिए टैक्सेस इतना बड़ा, एथेनॉल कंपनीज के लिए टैक्सेस इतना कम हुआ। गवर्नमेंट ने रिसेंट में क्या अनाउंस किया था कि जो भी एथेनॉल कंपनीज है, बेसिकली जो शुगर रहता है ना, शुगर एथेनॉल से ब्लेंड होता है। तो गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस किया कि जो एथेनॉल ब्लेंडिंग कैपेसिटी है शुगर कंपनीज के लिए वो 10% से हम इंक्रीज कर रहे हैं। अब इसका मतलब क्या था ना कि जिसको अच्छे से फंडामेंटल एनालिसिस आता है, इसका मतलब ये था कि शुगर कंपनीज का प्रोडक्शन 10% से इंक्रीज होगा, उनका प्रॉफिट भी 10% से इंक्रीज होगा, विच इज पॉजिटिव फॉर द शुगर कंपनीज। बिकॉज आप कभी भी शुगर फैक्ट्रीज के आसपास जाओगे ना, बहुत बदबू आती है, वो बदबू रहती है एथेनॉल की, राइट। वो बदबू रहती है कि इनकी जो ब्लेंडिंग कैपेसिटी होता है, उसका जो पोल्यूशन रिलीज होता है, उस चीज की ये बदबू रहती है। तो जब एथेनॉल ब्लेंडिंग कैपेसिटी गवर्नमेंट इनको बोलता है कि आप इंक्रीज करो, तो ये इनके प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं। प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होता है तो सेल्स इंक्रीज होता है, और सेल्स अगर इंक्रीज होता है तो प्रॉफिट इंक्रीज होता है। सो कभी भी सेक्टर रोटेशन करो कि कौन सा सेक्टर वर्क कर सकता है, कौन सा सेक्टर रोटेशन वर्क नहीं कर सकता है। ऑलवेज रिमेंबर कि सही सेक्टर अगर आपने पकड़ा तो यू विल ऑलवेज मेक राइट काइंड ऑफ प्रॉफिट्स। बट अगर आप रॉन्ग सेक्टर में पैसा लगा रहे हो, जैसे आईटी सेक्टर, या यूएस टैरिफ के बाद 40% ऑफ द आईटी सेक्टर का रेवेन्यू आता है यूएस मार्केट से। यूएस मार्केट ही इतने अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है, यूएस की आईटी कंपनीज ही ग्रो नहीं कर रही है, वाई द हेल इंडियन आईटी कंपनीज ग्रो करेंगी? वहां पे इतनी ज्यादा जॉब फायरिंग हो रही है। हाँ, आप बोलोगे कि तन्मय यूएस मार्केट तो ऑल टाइम हैप्पी, यस। यूएस के जो फाइनेंस स्टॉक्स है एंड टेक स्टॉक्स है, दे आर परफॉर्मिंग वेरी गुड, बट द आईटी एंड सॉफ्टवेयर कंपनीज, दे आर परफॉर्मिंग दैट गुड। सो अगेन, ये एक इंडस्ट्री ओवरव्यू है कि जहां पे आपको इंडिया में जितनी भी इंडस्ट्रीज है वो पूरी इंडस्ट्रीज मिलती है कि कैसे काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज है, राइट, कौन सी इंडस्ट्रीज है,
कौन से इंडस्ट्री में कितने कंपनीज है, उस इंडस्ट्री का मार्केट कैप कितना है, उसका पी कितना है, राइट? Nvidia is a software company, sir, right? Nvidia as a software is a single company is growing, but look at Google, Alphabet, and all the big companies. They aren't growing that much, right? All the big banks, all the big motor companies, they might having a good growth, but the main software companies, ये जो tech companies है, उनमें इतना growth नहीं है दिख भाई. So अगेन व्हेन आई कम टू द इंडस्ट्री ओवरव्यू, अगर मैं आपको कभी बोलूँ कि तन्मय पावर सेक्टर बढ़ सकता है, तन्मय एयरलाइन सेक्टर बढ़ सकता है, तो आपको अगर वो सेक्टर जानना है ना, तो आप यहाँ पे आ सकते हो कि कौन सा सेक्टर है, कितने टाइप्स ऑफ सेक्टर है, अलग अलग टाइप के सेक्टर्स है यहाँ पे, उन सेक्टर्स में कितनी कंपनीज है, सेक्टर के मार्केट कैप कितना है, आपको यहाँ पे पूरा डेटा मिलता है, A to Z पूरा डेटा, राइट? दिस इज द बेस्ट यूज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म. यहाँ पे आपको अलग अलग इंडस्ट्रीज के डेटा मिलता है, उनकी वैल्यूएशंस, उनकी कंपनीज का. सो अभी हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है, द नेक्स्ट एग्जांपल इज गोना बी अबाउट द राइट काइंड ऑफ सेक्टर पिकिंग. सो राइट काइंड ऑफ सेक्टर पिकिंग आप कैसे करते हो? थ्रू सेक्टोरियल एनालिसिस. सो सपोज यहाँ पे अगर हम चूज कर ले पावर सेक्टर को, ठीक है, सो लेट्स गो फॉर द पावर सेक्टर, राइट? नाउ पावर जनरेशन सेक्टर में आ जाओ. नाउ दिस आर द कंपनीज जो पावर जनरेशन वाली कंपनीज है. यहाँ पे आपको उनका पूरा डेटा मिल रहा है कि कंपनी कैसी है, पी रेशो कितना है. नाउ व्हाई आई एम चूजिंग पावर सेक्टर, मैं आपको ये रीजन बताता हूँ, राइट? मैंने पावर सेक्टर तो चूज कर लिया, तो सपोज यहाँ पे रिलायंस पावर है, एनटीपीसी ग्रीन है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी है, एनटीपी उसके साथ साथ अडानी ग्रीन है, फिर सब इतनी सारी कंपनीज है. तो वाई आई चूज पावर सेक्टर, मैं आपको ये बताता हूँ. सपोज अगर हम जेएसडब्ल्यू एनर्जी में आ जाए, राइट? क्योंकि पावर सेक्टर मेरे रडार में क्यों है? पावर सेक्टर इसलिए मेरे रडार में है ना, बिकॉज पावर सेक्टर टेंड्स टू परफॉर्म अ लॉट इन द क्वार्टर ऑफ जून. यहाँ पे आपको मैं लाइव एग्जांपल देता हूँ. देखो, मार्च वाला क्वार्टर होता है कंपनी का 2022 में. उसके बाद लुक एट द ग्रोथ इन द जून क्वार्टर. जून क्वार्टर में कंपनी का सेल्स ऊपर जाता है, दो द प्रॉफिट इज लिटिल बिट डाउन, बट द सेल्स इज ऑन द अपवर्ड साइड. अगेन 2023 के मार्च में आ जाओ, द सेल्स गोज अप फॉर द कंपनी, एंड जून क्वार्टर में अगेन सेल्स अगेन गोज मोर अप फॉर द कंपनी. दिसंबर से मार्च में इंक्रीज हुआ एंड जून में और इंक्रीज हुआ. 2023 में आ जाओ, मार्च में इंक्रीज हुआ, जून में और इंक्रीज हुआ. एंड अगेन इस साल में आ जाओ, इस साल देखो कंपनी का 3,190 करोड़ का सेल्स है, प्रॉफिट्स आर एट 415 करोड़. लास्ट ईयर के अगर मैं मार्च से अगर कंपेयर करूं, लास्ट ईयर के मार्च में कंपनी का 2,750 करोड़ का सेल्स. नाउ दिस इज कॉल्ड एज सेक्टर रोटेशन, कि मार्च इज द मंथ की जहां पे, मार्च एंड जून इज द मंथ की जहां पे कंपनी टेंड्स टू गिव बेटर रिजल्ट्स, एंड अगेन सितंबर में भी कंपनी और परफॉर्म करती है. सो एक्चुअली जून एंड सितंबर आर द मंथ की जहां पे कंपनी का ग्रोथ होता है इन टर्म्स ऑफ सेल्स, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट. एंड लास्ट ईयर कंपनी ने जितना मार्च में सेल्स किया था, इस साल उससे ज्यादा किया है. हर साल कंपनी का ग्रोथ देखो इन टर्म्स ऑफ जून, इट इज एक्चुअली, चलो 2023 में थोड़ा बहुत डाउन हुआ था 2024 में, बट ओवरऑल 2022 से देखो द कंपनी इज टेंड टू परफॉर्मिंग गुड, राइट? एंड मार्च में कंपनी का, लास्ट ईयर मार्च से कंपनी में अच्छा ग्रोथ आया था, एंड इस साल जून में भी एक्सपेक्टेड रहेगा कि ग्रोथ कंपनी का अच्छा रहेगा. अगर आप बोलो कि तन्मय एक और एग्जांपल दे, लेट्स कंसिडर अडानी पावर. एंड आई गो टू अडानी पावर, एंड पावर सेक्टर इतना परफॉर्म भी नहीं किया लास्ट फ्यू मंथ्स में, इसीलिए आई फील कि अडानी पावर इज काइंड ऑफ अ सेक्टर व्हिच माइट परफॉर्म. अडानी पावर मार्च जून में ग्रोथ देखो कंपनी का कैसा, मार्च जून में ग्रोथ देखो कंपनी का कैसा है, मार्च जून में ग्रोथ देखो कंपनी का कैसा है. एंड अगेन इस साल मार्च में कंपनी ने वन ऑफ द बेस्ट सेल्स किया है मार्च क्वार्टर्स में, एंड अगेन जून क्वार्टर में एक्सपेक्टेड है कि कंपनी एटलीस्ट 15,000 करोड़ से ज्यादा सेल्स करे. एंड अगेन हमारी फेवरेट कंपनी को भी हम ले लेते हैं, टाटा पावर. कम टू टाटा पावर, मार्च जून में ग्रोथ देखो, मार्च जून में ग्रोथ देखो, मार्च जून में ग्रोथ देखो. एंड अगेन मार्च में कंपनी ने अच्छा सेल्स किया था. Now somewhere the growth and sales would be expected very growth in the month of June, because इस साल मार्च में कंपनी ने ऑल टाइम हाई प्रॉफिट किया है, एंड मार्च में, जून में क्या पता कि कंपनी और अच्छे से प्रॉफिट्स पोस्ट करे. एंड फंडामेंटली दिस कैन बी अ इन्वेस्टेबल स्टॉक अगर हम फंडामेंटल एनालिसिस करें, बिकॉज none of the there is no recommendation in this analysis. We are doing this only for analysis purpose purely. Now again एक और कंपनी है जिसके अच्छे रिजल्ट्स अपोज हुए हैं. The name of the company is CG Power, right? If you come to CG Power, look at the growth CG Power is doing, right?
लास्ट ईयर के जून में कंपनी का सेल्स 2200 करोड़ था। इस साल कंपनी ने 2800 करोड़ का सेल्स किया है। द प्रॉफिट इज गुड, दो द प्रॉफिट इज लिटिल बिट डिक्लाइन फ्रॉम द लास्ट क्वार्टर, बट द सेल्स इज वेरी गुड फॉर द कंपनी। उसके साथ साथ अगर आप उसके पहले जून क्वार्टर में जाओगे तो 1800 करोड़ का सेल्स था, उसके पहले जून क्वार्टर में जाओगे तो 1600 करोड़ का सेल्स था। द कंपनी इज डूइंग वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ सेल्स, वो द प्रॉफिट्स हैव डिक्लाइन लिटिल बिट, बट उसके साथ साथ अगर आप स्टॉक को भी देखोगे तो स्टॉक भी डिक्लाइन हुआ है, तो उस हिसाब से कंपनी फेयर वैल्यू पे। एंड अगेन दिस इज हाउ द सेक्टोरियल एनालिसिस वर्क्स फॉर कंपनी। एंड अब अगर आने वाले हम क्वार्टर्स में देखेंगे तो धीरे धीरे इन द एंड ऑफ द सितंबर क्वार्टर्स समवेयर द होटल इंडस्ट्री विल स्टार्ट टू हैव अ मूव, बिकॉज आप दिसंबर में जाके जब शादी का सीजन रहता है, हॉलीडे सीजन रहता है, अब जब जाके इन्वेस्ट नहीं करते हो, राइट? आप होटल स्टॉक्स में कब डालते हो? व्हेन द सेक्टर इज एट डिप्स ड्यूरिंग द सितंबर क्वार्टर। सितंबर क्वार्टर्स के बाद आप देखोगे कि होटल के जो भी स्टॉक्स रहते हैं वहां पे ग्रोथ आना शुरू होता है। सो होटल सेक्टर इज ऑल्सो वेरी गुड सेक्टर, कि जहाँ पे दिसंबर जो उनका क्वार्टर रहता है एंड उसके बाद दिसंबर क्वार्टर के बाद जो मार्च क्वार्टर रहता है, दे हैव अ वेरी गुड सेल्स एंड प्रॉफिट डेटा इन दोस क्वार्टर, राइट? सो दिस इज हाउ यू लुक एट द गुड कंपनीज। एंड पावर सेक्टर अगर हमने अभी लाइव देखा कि हाउ पावर सेक्टर टेंड्स टू परफॉर्म इन द जून क्वार्टर। सो in next 1 month you will see a good growth happening in the power sector, reason being because this is the sectorial phase जहाँ पे वो सेक्टर परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी रखता है, and whenever the stock tends to perform fundamentally good in terms of sales and profit, they will give you good return, right? Okay, now once we go back to feeds में यहाँ पे स्कैनर्स रहते हैं। इन स्कैनर्स को आप कैसे यूज कर सकते हो कि अगर आपको किसी भी कंपनीज के बारे में अगर आपको जानकारी जानना है कि मतलब अगर मैं करंट क्वार्टर के बारे में देख रहा हूँ, तो ये फंडामेंटली स्पिनर्स है जो फिल्टर आउट करते हैं स्टॉक्स को के प्रायोरिटी के हिसाब से। तो सपोज यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स वाले इसमें हम आ जाए, तो अगर इस क्वार्टर में हर क्वार्टर वाइज अगर कंपनी ग्रो कर रही है, उसका भी एक स्क्रीनर है। स्क्रीनर मतलब कि वो फिल्टर्स यूज करता है टू टेक आउट द स्टॉक्स अकॉर्डिंग टू योर ओन नीड। तो क्वार्टरली ग्रोथ वाला एक स्क्रीनर है, बेस्ट ऑफ द लेटेस्ट क्वार्टर वाला एक स्क्रीनर है, लॉस टू प्रॉफिट में आने वाली कंपनीज का एक स्क्रीनर है। बहुत अलग अलग टाइप के स्क्रीनर्स रहते हैं। और आप मुझे पूछते हो ना कि तन्मय 4-5 हजार करोड़ कंपनीज है यार, उसमें से हाउ डू आई टेक आउट द स्टॉक्स? सी दिस इज द वे यू कैन टेक आउट द स्टॉक्स। आप पहले फंडामेंटली देखो, टेक्निकली स्टॉक को चार्ट्स पे डालो एंड यू चूज द कंपनी। तो क्वार्टरली ग्रोथ में अगर हम आ गए, तो सपोज लेट्स लुक एट बैंक ऑफ महाराष्ट्र, राइट? ना लुक एट बैंक ऑफ महाराष्ट्र। कंपनी देखो पिछले 1-2 मंथ से ग्रो कर रहा है अच्छा खासा। एंड व्हेन यू कम टू द क्वार्टर्स, लुक एट द ग्रोथ। हर क्वार्टर में कंपनी ग्रो कर रही है। लास्ट ईयर के जून में कंपनी का जो सेल्स था वो 5800 करोड़ था। उसका प्रॉफिट था 1300 करोड़। इन दिस ईयर द कंपनी इज हैविंग अ सेल्स ऑफ 7000 करोड़ रुपीस एंड अ प्रॉफिट ऑफ 1500 करोड़ रुपीस। एंड फन पार्ट है, जब हम चार्ट पे आते हैं लास्ट ईयर जून के समय, अगर हम स्टॉक के प्राइस को देखें तो दैट वाज अराउंड 67, राइट? 67-68 के प्राइस पे था, ऑलमोस्ट 70 के प्राइस पे था। अभी कंपनी का प्राइस ऑलमोस्ट 57 के पास है। सो फंडामेंटली द कंपनी इज अंडर वैल्यूड। व्हेन यू लुक एट द पी रेशियो इज वेरी गुड। द कंपनी इज हैविंग अ गुड आरओई, द आरओसी इज ऑल्सो गुड। हाँ, एक क्वेश्चन सबके लिए ना, एक छोटा सा क्विज है। अब मुझे बताओ बैंक ऑफ महाराष्ट्र में आरओई से जो कम आरओसी क्यों है, राइट? आरओई 22.8% है, बट आरओसी बस ऑलमोस्ट 6% है। रीजन? एनीवन? यस दीप, इट्स फ्री टू यूज। ओके, बैंकिंग एकदम राइट, बट बैंकिंग में रीजन डिपॉजिट्स। एंड बैंकिंग के सबसे मेन रेवेन्यू सोर्स कहाँ से? एकदम सही बोला दीप, इंटरेस्ट, राइट? बैंकिंग खुद के फंड्स, खुद का कैश जो फ्लो रहता है, उनका खुद का कैश फ्लो नहीं रहता है। उनका जो मेन कैश फ्लो रहता है, उनका जो मेन प्रॉफिट रहता है, द मेन प्रॉफिट कम्स फ्रॉम द शेयर होल्डर्स मनी। एंड शेयर होल्डर्स मनी रहता है आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी। तो इंटरेस्ट जो रहता है, इंटरेस्ट से वो जो पैसा कमाया जाता है वगैरह, वहां से बैंक पैसा कमाता है। बैंक को यस, उनको इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो बैंक का जो मेन कैश फ्लो आता है वो उनके इन्वेस्टर से आता है, जनरल पब्लिक से आता है, उनके खुद के प्रोडक्ट से नहीं आता है। दिस इज द रीजन वाई द आरओ इज मोर देन आरओसी। बट ओवरऑल बैंकिंग इंडस्ट्री में अगर किसी भी कंपनी का आरओसी इज मोर देन 7 and 8 एंड आरओ इज मोर देन 12 or 15, दैट इज कंसिडर्ड एज वेरी गुड, राइट? सो हर सेक्टर का अपना आरओसी एंड आरओई रहता है। बैंकिंग में अगर आप जनरली देखोगे तो 8% के पास अगर आरओसी रहा, 8 to 6% के पास अगर आरओसी रहा, एंड 12 to 15% के पास आरओई रहा, तो दैट्स वेरी गुड। अगर आप आईटी सेक्टर में जाओगे तो आईटी सेक्टर का सबसे हाईएस्ट आरओसी एंड आरओई रहता है। नाउ
कौन मुझे बोलेगा कि वाई ROC इज मोर इन IT सेक्टर? एनीवन? जब तब हम कंपनीज पे आए, ये देखो यहाँ पे ROC 38% है, ROE 28.8% है। नाउ इन्फोसिस में वाई ROC इज मोर एंड वाई ROE इज लेस? यस नेहा, एकदम सही बोला आपने। द कोर इनकम इज कमिंग फ्रॉम सर्विस। सर्विस भाई एकदम सही आपने ऐड किया कि यार इनका क्या है, इनको सर्विस देना है, राइट? एंड इनको क्लाइंट फिर पैसा देता है, तो इनका मेन इनकम जो है, इनको इंटरेस्ट इंटरेस्ट से नहीं रहता है। इनका मेन इनकम आता है कि ये इनका सॉफ्टवेयर बेचते हैं, प्रोडक्ट बेचते हैं, उससे इनका पैसा आता है। एंड इनका इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना ज्यादा स्पेंडिंग भी नहीं होता है। वही अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में देखोगे, वहां ROC कम हो जाता है। बट IT हैज वन ऑफ द हाईएस्ट ROC एंड ROE. So IT sector में अगर ROC is more than 30 to 35% and ROE is more than 20 to 25%, that is considered as good. So हर इंडस्ट्री के अपने ROC and ROE स्टैंडर्ड रहते हैं, एंड कभी कभी कंपनी पे भी डिपेंड करता है कि हाउ द ग्रोथ इज हैपनिंग इन द कंपनी। बिकॉज हाई ग्रोइंग कंपनीज लाइक एटर्नल, यहाँ पे देखो ROC ROE बहुत कम है। बिकॉज क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि ये क्या करते हैं, जितना भी इनका प्रॉफिट आता है री इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में, तो इनके पास प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम बाकी रहते हैं। दिस इज द रीजन वाई ROC एंड ROE एटर्नल जैसी कंपनीज, नाइका, पेटीएम जैसी कंपनीज में बहुत कम रहता है। बट अगेन आप वही वोडाफोन आइडिया में आ जाओ, यार यहाँ पे ROC है ही नहीं, नेगेटिव में, ROE तो है नहीं, पी रेशो भी नहीं है। क्यों नहीं है? जल्दी, अभी सब इतना सीख गए तो जल्दी बोलो कि हाँ, प्रवीण भाई एकदम सही ऐड कर दिया। सो लॉस मेकिंग कंपनी अगर रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं है, प्रॉफिट ही नहीं कमा रहा है, नेट प्रॉफिट ही नहीं है कंपनी का, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स तक ही उसका पैसा है, तो अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स तक का भी उसका जो पैसा है वो नेट प्रॉफिट नेगेटिव हो रहा है। जब उसका प्रॉफिट नेगेटिव हो रहा है तो प्राइस टू अर्निंग रेशो बिकम्स नेगेटिव फॉर द कंपनी। तो लॉस मेकिंग कंपनीज का ROE एंड पी रेशो नहीं रहता है। रिमेंबर, अ कंपनी नीड्स टू हैव अ गुड ग्रोथ, तभी जाके उसका पी रेशो एंड ROE रिफ्लेक्ट होता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि एक कंपनी को एटलीस्ट एंड एटलीस्ट 3 क्वार्टर तक प्रॉफिटेबल रहना पड़ता है, तो जब जाके उसका पी रेशो इन द फोर्थ क्वार्टर रिफ्लेक्ट होता है। और उसका उसका पी रेशो रिफ्लेक्ट नहीं होता कि वो एक क्वार्टर में प्रॉफिट कमाए और 2 क्वार्टर्स में लॉसेस करे, राइट? तो उसका मेन ओके, चलो आदित्य आपने पूछ ही लिया है तो आपको बताता हूँ। तो दिस इज ओल्ड एग्जाम्पल, आई वोंट टेक एनी न्यू एग्जाम्पल्स इन दिस फॉर द मोमेंट। बट आइनॉक्स प्रिंट जैसी कंपनी देखो आदित्य, ठीक है ना? पहले कंपनी लॉस मेकिंग थी, इसका पी रेशो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। दिसंबर, मार्च, जून, जून एंड सितंबर के बीच में कौन सा आता है? अगस्त का महीना आता है, राइट? जून 2024 से लेकर सितंबर 2024 में कौन सा आएगा? अगस्त का मंथ आएगा। सो आप जैसे ही अगस्त में आ जाओगे, देखो इसका पी रेशो कहाँ से रिफ्लेक्ट होना शुरू हुआ? अगस्त से शुरू हुआ। क्यों अगस्त से शुरू हुआ? बिकॉज मैंने बोला ना, 3 क्वार्टर तक कंपनी को प्रॉफिटेबल बनना पड़ता है, जब जाके चौथे क्वार्टर के पास कंपनी का पी रेशो रिफ्लेक्ट होता है। हाँ आदित्य, आपके क्वेश्चन को हम आंसर करते हैं यहाँ पे, राइट? पी रेशो कैसे कम होता है कंपनी के लिए, कैसा बेटर होता है, एंड ROC एंड ROE कैसे कंपनी के लिए इंप्रूव होता है। नाउ लुक एट दिस कंपनी। यहाँ पे ROC 11.5% है, ROE इज रफली 13.2%। बट पहले आदित्य ये है ना, मुश्किल से 2% था, एंड ROE तो मुश्किल से 1-2% था। बट अब ये इंप्रूव कैसे हुआ है, मैं आपको वो बताता हूँ। देखिए एकदम सिंपल सा एनालिसिस एंड व्हाई दिस कंपनी बिकेम अ मल्टी बैगर। अभी रिसेंट टाइम्स में कंपनी परफॉर्म नहीं करी है, बट 1 साल पहले तक कंपनी ने बहुत रिटर्न दिया था इन्वेस्टर्स को। अब देखो, पहले कंपनी 350 करोड़ का सेल्स कर रही थी, -65 करोड़ का लॉस कर रही थी। वहां से कंपनी ने इंप्रूव किया, 371 करोड़ का सेल्स किया, -27 करोड़ का लॉस किया। उसने उसके लॉसेस कम किए। उसके आने वाले क्वार्टर में देखो, 503 करोड़ का सेल्स किया, 2 करोड़ का प्रॉफिट किया। रफली 0.25% ऑफ द कंपनीज सेल वॉज द नेट प्रॉफिट। तो उसका ROCE भी बहुत कम था, नेगेटिव में ही था। वहां से मार्च 2024 में आ जाओ, 528 करोड़ का सेल्स किया, 33 करोड़ का प्रॉफिट किया, मार्जिन इंप्रूव हुए, 3-4% आए। जून 2024 में 639 करोड़ का सेल्स किया, 50 करोड़ का प्रॉफिट किया, मार्जिन और इंप्रूव हुए, 7-8% आए। अब 2024 में, सितंबर 2024 में 730 करोड़ का सेल्स किया, 90 करोड़ का प्रॉफिट किया, 10-11% पे उसके प्रॉफिट मार्जिन आए। उसका ROC ROE क्या हुआ? ओवर द टाइम इंप्रूव होते गया। तो जितना आपके कंपनी का सेल्स इंप्रूव होता है, प्रॉफिट इंप्रूव होता है, उतना आपका कंपनी में पोटेंशियल इंक्रीज होता है, उतना आपका ROC इंप्रूव होता है। और ओवर द टाइम आप देखोगे आपका पी रेशो क्या होता है? नीचे की तरफ जाता है। फिर देखो, दिसंबर 2024 में 911 करोड़ का सेल्स, 110 करोड़ का प्रॉफिट। अभी भी 10-12% के पास उसके ऑलमोस्ट मार्जिन आ गए। एंड मार्च 2025 में 1270 करोड़ का सेल्स एंड 190 करोड़ का प्रॉफिट। एंड नाउ लुक एट ओवर द टाइम, पहले बस उसका 1-2% ROC था एंड ROE भी बहुत कम था। अब उसका 11.5% से ROC है, एंड ROE उसका 13.2% एंड पी रेशो भी देखो,
पी रेशो कितना ज्यादा था, 418 था, बट ओवर द टाइम जैसे कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव हुए, कंपनी फंडामेंटली गुड होती गई एंड उसका पी रेशो क्या हो गया, कम हो गया. This is a company which is a turnaround company, and always a turnaround company is a good company to be invested in the longer run. बिकॉज अपने को मालूम है ना कि कंपनी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, अच्छा सेल्स जनरेट कर रहा है, अच्छा ग्रोथ कर रहा है, पी रेशो नीचे जा रहा है, आरओसी और आरओई अगर इंप्रूव हो रहा है तो उनके पास प्रॉफिट मार्जिन अच्छे हैं. सो ऑलवेज द प्रॉफिट मार्जिन शुड बी गुड फॉर द कंपनी. नाउ the important thing which we would cover before we end our session is cash flows. Now cash flows क्या रहता है ना कि cash flow basically क्या रहता है कि आपके कंपनी में कितना पैसा आता है, कितना पैसा जाता है. सिंपल लैंग्वेज में उसको हम बोलते हैं कैश फ्लो. I won't complicate it कि cash flow is a term where the money comes and go out in the company from the transactions. नहीं, ऐसे बोलूंगा तो कंफ्यूज हो जाऊंगे. कैश फ्लो क्या रहता है, कंपनी के डे टू डे जो ट्रांजेक्शन रहते हैं, इन्वेस्टमेंट्स रहते हैं, उसको हम बोलते हैं कंपनी की कैश फ्लो. Now why cash flow is important in fundamental analysis? बस आप अगर फंडामेंटल एनालिसिस करते हो, नोइंग कि आपकी कंपनी का इन्वेस्टमेंट कैसा है, ग्रोथ कैसा है, सेल्स कैसा है, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. जितना आपके कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट डेटा अच्छा रहता है, उतने आपके कंपनी में ग्रोथ अच्छा रहता है. जैसे हमने पहले स्किनर्स पे देखा था कि यहाँ पे हमने मल्टीपल स्किनर्स को यूज किया, क्वार्टरली ग्रोथ को यूज किया, बेस्ट ऑफ द लेटेस्ट क्वार्टर्स को यूज किया. यहाँ पे आपको दिख के आते कि कौन सी कंपनीज है जिन्होंने इस क्वार्टर में परफॉर्म किया है, राइट. कौन सी कंपनीज है कि जिनका ग्रोथ अच्छा है. So suppose यहाँ पे let's consider company, let's say करें कौन सी अंडर वैल्यूड है, कौन सी. Okay, so there are multiple companies, but okay, let's consider Zensar Tech. Now, Zensar Tech, the company, the high was 985, the current price of the company is 825. The company has done good growth. P ratio 27.8 के पास है, very good. ROC 21.3%, ROE 16.4%, decent for the company. Now, fundamentally company तो हमने देखा कि अच्छा है. Quarter on quarter growth देखो, company is growing in terms of sales, company is growing in terms of profit. All time high sales, all time high profit. ईयर ऑन ईयर देखो, कंपनी ने सेल्स बहुत इंप्रूव किया है, प्रॉफिट भी बहुत इंप्रूव किया है. अगेन फंडामेंटली वेरी गुड, अंडर वैल्यूड कंपनी. प्रोमोटर होल्डिंग इट्स गुड, एफआईएस होल्डिंग इट्स स्टेबल, डीआईएस ने अपने होल्डिंग को बढ़ाया है एंड पब्लिक से होल्डिंग बाय किया है. पब्लिक से अगर कभी भी एफआईएस एंड डीआईएस अपनी होल्डिंग इंक्रीज करते हैं, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर द कंपनी बिकॉज वो ट्रस्ट कर रहे कंपनी को. नाउ यहाँ पे मेन रहता है कैश फ्लो. जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी रहता है वो आपके कंपनी के डे टू डे ट्रांजैक्शन का पैसा रहता है कि उन्होंने उनके कस्टमर्स को जो पैसा दिया है, कस्टमर से जो पैसा कमाया है, उनके वेंडर्स को जो पैसा दिया है, वेंडर से जो पैसा लिया है. कंपनी का जो डे टू डे कैश फ्लो रहता है वो कंपनी का रहता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी की उनके इन्वेंट्री से कितना पैसा आता है, उनके लोन एडवांसेस से कितना पैसा आता है. दैट इज द कंपनीज कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी. देन द सेकेंड काइंड ऑफ कैश फ्लो इज द कंपनीज इन्वेस्टमेंट कैश फ्लो. इन्वेस्टमेंट कैश फ्लो क्या रहता है कि अगर कंपनीज, कोई कंपनीज है कि जो एफडीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो उनका इन्वेस्टमेंट कैश फ्लो है. कोई कोई कंपनीज रहते हैं वो क्या करते हैं, वो अपना पैसा कोई रिसर्च में लगाते हैं. फार्मा कंपनीज अपना पैसा रिसर्च में लगाते हैं, तो रिसर्च में अगर अपना पैसा लगा रहे हैं, अगर वो नेगेटिव है, दैट्स नॉट बैड फॉर द कंपनी. एंड थर्ड काइंड ऑफ कंपनीज रहती है जोमेटो जैसी कंपनीज. वो क्या करती है, इन्वेस्टमेंट इन स्टार्टअप्स करती है, एक्विजिशंस करती है, इस वजह से उनका इन्वेस्टमेंट कैश फ्लो नेगेटिव आता है. इट्स नॉट बैड फॉर द कंपनी बिकॉज वो क्या करे, खुद के ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट कैश फ्लो करें. जो थर्ड काइंड ऑफ कैश फ्लो है, दैट इज द फाइनेंसिंग एक्टिविटी. कंपनी जो रहती है, कोई डेप्ट लेती है या आईपीओ में, एफपीओ में फंड रेज करती है, क्यूआईपी में फंड रेज करती है, ओएफएस में फंड रेज करती है, तो वो कैश फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटी रहता है. अगर वो अपने लोन को पे नहीं कर पा रही है, उसका डेप्ट अगर इंक्रीज हो रहा है, तो इट वुड बी नेगेटिव. और अगर वो अपने लोन को पे कर रही है एंड द कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज बिकमिंग पॉजिटिव, देन दैट्स ऑलवेज गुड फॉर द कंपनी. एंड इफ अ कंपनी, अगर उनके कैश फ्लोज अगर अच्छे नहीं रहते हैं, लॉन्गर रन में इट्स नेवर गुड फॉर द कंपनी. बट इफ अ कंपनी, इफ their cash flows are improving, if the cash flows are overall net positive, then it's good for the company. Now, in case of Zentech, the company's cash flow is negative in this quarter. Now, operating cash flow तो उनका पॉजिटिव है. फिर उसके बाद अगर हम नीचे आ जाए, तो ओवरऑल वर्किंग कैपिटल्स में उन्होंने 55 करोड़ लगाए हैं, टैक्सेस में उन्होंने इतना पे किया है. वेर वेर इज द प्लेस वेर दे आर एक्चुअली फेसिंग प्रॉब्लम्स. नाउ दे हैव परचेज समथिंग, राइट. उन्होंने कुछ तो परचेज किया है. अगर कंपनीज कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कोई हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहा है,
जिसकी वजह से उसका कैश फ्लो नेगेटिव आ रहा है, सी दैट्स नॉट नेगेटिव बिकॉज वो एक करंट क्वार्टर के लिए हो सकता है। एंड जेंसार इज अ कंपनी विच इज अ ग्रोइंग कंपनी, उसके साथ साथ जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी रहता है उसमें कंपनीज के डिविडेंड्स का भी पैसा रहता है। तो जेंसार ने 200 करोड़ वर्थ डिविडेंड इस क्वार्टर में दिया है, जिस रीजन की वजह से अगेन उसका कैश फ्लो जो नेट कैश फ्लो है वो नेगेटिव है। बट ये नेगेटिव नेट कैश फ्लो मतलब ये नहीं है कि कंपनी बुरी है, कंपनी ने भाई ग्रोथ के लिए कुछ तो अक्वायर किया है, कंपनी ने कोई फैक्ट्री ली होंगी, कंपनी ने कोई स्टार्टअप को अक्वायर किया होगा, उसके साथ साथ कंपनीज ने इन्वेस्टर्स को खुश रखने के लिए 200 करोड़ के डिविडेंड्स भी दिए। दिस इज द रीजन व्हाई द कंपनीज नेट कैश फ्लो इज नेगेटिव, और एल्स द कंपनी इज गुड, और एल्स द मेन जो रहता है ऑपरेटिंग कैश फ्लो वो पॉजिटिव रहना चाहिए। एज लॉन्ग एज द ऑपरेटिंग कैश फ्लो इज पॉजिटिव फॉर एनी कंपनी, दैट्स गुड इन द लॉन्ग रन। नाउ इफ वी टेक वन मोर कंपनी, Elecon Engineering Mill. So, this is a very good company. अगेन आप लोगों के लिए होमवर्क है, दिस इज अ कंपनी विच इज ग्रोइंग इन सेक्टर्स। जब आप बोलोगे कि मैं मार्च से तो कंपनी का सेल्स बहुत गिरा है, नहीं भाई, जून वाइज देखो, जून में हर साल कंपनी का सबसे बुरा सेल्स रहता है, बट इस साल का जो जून था दैट इज वन ऑफ द बेस्ट जून द कंपनी हैज एवर डन इन टर्म्स ऑफ सेल्स एंड इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। तो ओवरऑल द कंपनी इज जस्ट इन द साइक्लिक फेज करेक्शन, बट दिस इज अ गुड कंपनी। तो यहाँ पे हम जब कैश फ्लो में आ जाते हैं, look how the cash flows are going up for the company. And if a company has a good net cash flow, ओवरऑल द नेट कैश फ्लो अगर कंपनी का, किसी भी कंपनी का अगर नेगेटिव से कम नेगेटिव होता है या पॉजिटिव से ज्यादा, मतलब जैसे 27 करोड़ था तो वहां से 49 करोड़ इंक्रीज हुआ, इट मींस द कंपनी इज हैविंग अ हेल्दी कैश फ्लो, इट मींस द कंपनी इज हैविंग अ हेल्दी फाइनेंशियल बुक। सो एनी कंपनी विद अ गुड फाइनेंशियल बुक इज अगेन फंडामेंटली गुड कंपनी। सो अगेन लुक एट द कंपनीज ग्रोथ इन लास्ट 1 ईयर, ऑलमोस्ट एंड ऑलमोस्ट कंपनी का लो 380 के पास है, 380 से कंपनी 750 तक गई है, ऑलमोस्ट एंड ऑलमोस्ट या 740 तक गई, 350 से 750 गई। अब 750 से कंपनी करेक्शन करिए, टेक्निकली इट माइट कम टिल 560 550, वहां पे इट कैन अगेन बी अ फंडामेंटली गुड कंपनी लॉन्गर है हमारे टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से। बट अगेन फंडामेंटल में हमने क्या पढ़ा, फंडामेंटल में हमने ये देखा कंपनी शुड हैव गुड वैल्यू, 52 वीक हाई 52 वीक लो देखो, पी रेशो देखो, look at the ROCE, look at the ROE, look at the market caps, ये सब चीजें हमने सीखी। उसके साथ साथ लुक एट द पीयर कंपैरिजन की कंपनी के ओवरऑल इंडस्ट्री वाइज पी कैसा है, एंड इंडस्ट्री वाइज पी एवरेज 57 है, उसी समय एलिकॉन इंजीनियरिंग का पी जो है वो 29 के पास है, इट्स अ गुड पी रेशो। ओवरऑल द कंपनी इज डूइंग गुड सेल्स, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में उसका ड्रॉप हुआ है, बट फ्रॉम द लास्ट क्वार्टर, लास्ट ईयर के जून से कंपनी ने बहुत इंप्रूव किया है। व्हेन वी लुक एट द ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, द कंपनी हैज डन एक्सीलेंट जॉब, राइट? सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखो, ईयर ऑन ईयर देखो, देन लुक एट द कैश फ्लोज, look at the shareholding pattern, and all these things which we have discussed on the upper side, P ratio, ROC, ROE, market caps. So these things are actually very important when you come to the fundamental analysis. हमने यहाँ पे ये भी देखा कि यू कैन फाइंड द कंपनीज, यू कैन फाइंड द इंडस्ट्रीज, यहाँ पे रिजल्ट्स आते हैं, यहाँ पे कंपनीज के आप इंडस्ट्री ओवरव्यू देख सकते हो, यहाँ पे आके स्क्रीनर में आके आप अलग टाइप के फिल्टर्स यूज कर सकते हो। यहाँ पे क्वार्टरली ग्रोज एंड बेस्ट ऑफ द लेटेस्ट क्वार्टर एंड लॉस टू प्रॉफिट कंपनीज, ये 3 फिल्टर्स आप स्टार्टिंग के लिए यूज करना शुरू करो। एज अ स्टार्टर दिस विल हेल्प यू टू फाइंड गुड कंपनीज इन द लॉन्ग रन। ओके, now let's come back at PPT and we are almost at the end of the session. Okay. So fundamentally good versus fundamentally bad हमने ऑलरेडी एग्जांपल्स देखे, सेक्टोरियल चेंजेस के हमने एग्जांपल देखे कि पावर सेक्टर कैसे जून क्वार्टर में परफॉर्म करता है, पावर सेक्टर में कैसे ग्रोथ आता है। ओके, एंड वन मोर होमवर्क आई विल गिव यू टू यू गाइस इज go and research about Amara Raja batteries. How do you see the cyclic change and fundamental change happening in Amara Raja batteries? Again, the peer companies, Exide Industries. Look and study these companies. You will find something good in these companies. कि फंडामेंटल ग्रोथ कैसा होता है, साइक्लिक चेंजेस कैसे होते हैं, प्रॉफिट वाइज कंपनी को कैसा जज किया जाता है, सेल्स वाइज कंपनी को कैसे जज किया जाता है। एंड आई वुड बी वेरी हैप्पी इफ यू गाइस डू द रिसर्च। आज हमने जो जो चीजें सीखी वो चीजों का यूज करो आप टू डू अ रिसर्च ऑन हमारा राजा बैटरीज एंड एक्साइड इंडस्ट्रीज। उसके साथ साथ again final thoughts from my side, fundamental analysis, it's all knowing about when to invest and how to invest, and it's all about कि आप कंपनी को देखो, because blind investment यार कभी हेल्प नहीं करता है। मेरे दोस्त ने बोला, मेरे पापा ने बोला, मेरे दूर के चाचा ने बोला, अरे यार उनके बोलने से क्या करना है, हम खुद की कंपनी जब रिसर्च करते हैं, खुद का एनालिसिस जब करते हैं ना, उसमें मजा ही अलग रहता है। एंड
it's always about the right kind of company in the longer run. Because someone told me ki, if you invest into the wrong kind of company, you become a beggar. But if you invest into the right kind of company, it is called as a multi-bagger company. So choose the right kind of company, because in the short run the market is a voting machine, but in the long run it is a weighing machine. And, you need to have a right weight on the right kind of stocks. पोर्टफोलियो में सही स्टॉक्स चाहिए, पोर्टफोलियो में ऐसे नहीं कि हमें हल्के स्टॉक्स चाहिए कि जो हमारे पोर्टफोलियो को नीचे लेके जाए. So I end my session here. I hope the content was good, and really thanks. I hope the session was good. I come to the end of my topics, and again, we will come to the doubts, questions. Stock specific मत पूछना. बाकी कोई feedback रहा तो please drop करना. Okay. Okay. So thank you, Aditya. Thank you for the feedback. Okay. Intrinsic value अगर आपको find करना है, just look at the growth in the company, कि how the company is performing on the sales part, on the profit part, and overall what is the P ratio for the company. हाँ, यस, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली यू आस्क मी सबरीश भाई, कि अगर आप बैंकिंग का मुझे पूछो तो बैंकिंग में जीएनपीए और एनएनपीए कभी भी देखो. राइट, जीएनपीए एनएनपीए क्या रहता है, मतलब आई विल जस्ट टेल इन अ वेरी शॉर्ट टर्म. जीएनपीए एंड जीएनपीए इज ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एंड एनपीए इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट. अभी मैं 2 मिनट ही लूंगा. नॉन परफॉर्मिंग एसेट मतलब क्या रहता है ना, कि यहाँ पे सपोज आदित्य भाई है, आदित्य भाई ने मुझसे कोई लोन लिया, एंड मैं बैंक हूँ, एंड मैंने आदित्य भाई को बोला कि यार आदित्य भाई, जितना भी टाइम है उतने टाइम से हमें आपको लोन चुकाना है विद द इंटरेस्ट. तो आदित्य भाई ने वो लोन चुकाना था 10 तारीख को, बट उसके बाद उन्होंने लोन दिया ही नहीं मुझे. राइट, जो भी इंटरेस्ट था, लोन था, वो उन्होंने दिया ही नहीं. अब एक 90 डेज का पीरियड रहता है कि जहाँ पे मैं उनको बोलता हूँ कि भाई 90 डेज में तुम मुझे दो. अगर 90 डेज में तुम अगर नहीं पे कर पाए, तो देन यू वुड बी कॉल्ड एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट. अगर कोई भी बंदा एक 90 डेज के पीरियड के बाद अगर अपना लोन नहीं चुका पा रहा है, अपना पैसा नहीं चुका पा रहा है, बैंक के नजरों में वो कहलाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट. एंड जो वो पैसा जो बैंक का जाता है उसको बैंक कहलाती है एज अ लोन्स. तो अगर कंपनी के हर क्वार्टर्स में एनपीएस रहते हैं, इस क्वार्टर में भी बैंक्स को एनपीए फेस करना पड़ता है, अपकमिंग क्वार्टर्स में भी बैंक को एनपीएस फेस करना पड़ता है, ऐसे हर क्वार्टर्स में बैंक के एनपीएस रहते हैं, एंड ओवरऑल जो पूरे साल के एनपीएस इकट्ठा रहते हैं उनको बोला जाता है ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट. एंड अब कभी भी अगर आदित्य भाई को मैंने लोन दिया था, तो आदित्य भाई को लोन देने के समय मैंने उनसे उनकी कोई जमीन के पेपर लिए होंगे या गोल्ड लिया होगा एज अ कोलैटरल. तो जब आप जीएनपीए को, जो पूरे साल भर के एनपीएस रहते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट. पूरे जीएनपीएस को जब कोलैटरल से माइनस करते हो, जो फाइनल लॉस बैंक को फेस करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. एंड इन केस ऑफ बैंक्स, जीएनपी और एनएनपीए कभी भी कम होना चाहिए. अगर जीएनपी और अगर एनएनपीए बैंक्स के लिए बढ़ रहा है, इट इज नॉट गुड फॉर द बैंक्स इन द क्वार्टर्स. अगर बैंक के सेल्स एंड बैंक का प्रॉफिट अगर बहुत बढ़ रहा है, उसके साथ साथ जीएनपी और एनएनपीए थोड़ा बहुत बढ़ रहा है, देन दैट्स ओके. बट अगर कोई भी बैंक एंड फाइनेंस कंपनी का जीएनपी और एनएनपीए बढ़ते जा रहा है एंड उसके प्रॉफिट्स एंड सेल्स नीचे जा रहे हैं, देन इट इज नॉट गुड फॉर एनी काइंड ऑफ बैंक. रिमेंबर दिस पार्ट, दिस विल हेल्प यू इन द लॉन्ग टर्म एनालिसिस. थैंक यू मनोहर जी, थैंक यू. Dividend paying completely depends from company to company, because PSU कंपनीज में डिविडेंड इज गुड. सो आई वुड से कि अगर आप कभी भी डिविडेंड पेइंग कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो, इन्वेस्ट एट द राइट टाइम वेयर द कंपनी इज अंडर वैल्यूड, वेयर द करेक्शन इज गुड. डोंट इन्वेस्ट एट द हाइज, बिकॉज फिर यार अगर 4-5% के लिए आपको डिविडेंड पेइंग कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, दे वुड बी स्लो मूविंग कंपनीज. राइट. सो अगर इफ यू फाइंड अ बेटर कंपनी विच कैन गिव यू मोर देन 20-30% रिटर्न इन अ ईयर, आई वुड से गो फॉर दैट कंपनी एट द एंड ऑफ द ईयर. एनएनपीए होता है, एनएनपीए आपको जस्ट ईपीएस, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट एंड सेल्स रहते हैं ना, उसी सेक्शन में आपको एनएनपीए एंड जीएनपीए देखने मिलेगा. तो कोटक महिंद्रा बैंक या कोई भी बैंक डालो, कोई कोई बैंक्स का अगर डेटा नहीं रहा तो चेक इट ऑन द अदर वेबसाइट्स लाइक ट्रेंडलाइन, बट आपको मिल जाएगा. मतलब आई वुड से सतीश भाई की, जो हाई ग्रोइंग कंपनीज रहती है लाइक जोमेटो, लाइक यू नो जूडियो, ट्रेंड, नाइका, यहाँ पे पी रेशियो बहुत हाई रहेंगे. एंड पी रेशियो देखने के दो तरीके रहते हैं.
एक एक अगर पी रेशो कंपनी का बहुत कम है तो उसका ग्रोथ हो ही नहीं रहा है। इन्फोसिस टीसीएस जाके देखो, उन्होंने एक साल में ज्यादा कुछ ग्रोथ ही नहीं दिया, दो द पी रेशो इज वेरी लेस, उनका सेल्स एंड प्रॉफिट उसी जगह पे जितना एक साल पहले था। तो अगर लो पी रेशो डजंट मीन कि कंपनी अंडर वैल्यूड है, कभी कभी लो पी रेशो मीन्स दैट पार्ट आल्सो कि कंपनी में ग्रोथ ही नहीं हो रही। एंड हाई पी रेशो मीन्स टू थिंग्स, एक है कि कंपनी बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है, दूसरी है कि कंपनी बहुत फास्ट मूविंग है, फास्ट मूविंग लाइक जोमेटो। जोमेटो देखो, उसका इतना फास्ट मूवमेंट हो रहा है कि इट इज ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट स्पीड, उसका सेल्स फास्ट ग्रो हो रहा है, दो द प्रॉफिट्स आर डिक्लाइनिंग लिटिल बिट, बट वो प्रॉफिट इसलिए डिक्लाइन हो रहा है बिकॉज इट इज री इन्वेस्टिंग इट बैक इनटू द कंपनी। सो पैरामीटर्स वाइज अगर आप न्यू एज कंपनीज को देख रहे हो तो वहां पी रेशो मत देखो, वहां कंपनी के कॉन कॉल्स एंड ग्रोथ को देखो कि सेल्स कैसा हो रहा है, प्रॉफिट कैसा हो रहा है, ग्रोथ कैसा हो रहा है। And if you're looking at the financial company, then look at the GNPA, NNPA, and if you're looking at the infrastructure and power companies, then look at the order book. Order book क्या रहता है ना, बेसिकली कंपनी के पास कितना ऑर्डर है इन द एग्जिस्टेंस, तो दैट इज द ऑर्डर बुक। तो हर एक इंडस्ट्री के हिसाब से अपना अपना पैरामीटर डिपेंड करता है, बट अप्लाई ऑल द पैरामीटर्स, सब पैरामीटर्स को अप्लाई करो, आरओसी अप्लाई करो, आरओई अप्लाई करो, प्रॉफिट अप्लाई करो, सेल्स अप्लाई करो, नेट प्रॉफिट अप्लाई करो, इंडस्ट्री पैरामीटर अप्लाई करो, एंड देन यू विल नो एवरीथिंग। थैंक्स प्रवीण जी, थैंक्स फॉर द फीडबैक, थैंक्स। Any more doubts? Okay, thank you everyone. Thank you. This is Tanmay this side. I will take my leave, and I hope everyone enjoyed the session. I hope to stay in touch with each of you. And yeah, thank you guys. Thank you so much, sir, for such a clear, engaging, and a practical session. As Robert Greene has said, mastery is not a function of genius or a talent. It is a function of time and intense focus applied to a particular field of knowledge. And I would like to thank you for such a great personality and master in fundamental analysis of capital markets to join us on such a platform. And I'm sure from today onwards, we'll look at our charts a little differently. Now, I would like to call upon our managing committee member, Krish Bhanushali, to share some words. Thank you so much, Karan. I, Krish Bhanushali, Managing Committee member of Vikasa, would like to deliver the vote of thanks to the pillars of this Gyan Yagna series. WRC Chairman Ketan Sayya sir and Vikasa Chairman Jitendra Saglani sir. Because of these people, today we are possible to have this wonderful series. And obviously, to the eminent speaker for today's evening, Tanmay Bhandari sir. Thank you so much, sir, for sharing your knowledge in the form of Vodafone idea, whether it would be Paytm, also providing the knowledge on cash flows and providing your understanding in the field of, I would say, net profits. एक net profits क्यों important है? Today we are in a market where I would say valuations को कुछ ज़्यादा ही importance दिया जाता है, ignoring the profits. So thank you so much, sir, and your knowledge will surely help us and will help us to grow this in this journey. Thank you so much, sir, and to our wonderful audience as well. Till then, thank you, good night, and see you tomorrow to the yet another full session of Gyan Yagna series. Thank you guys. Thank you, wonderful audience, you guys, and thank you again, Krish, Ajinkya, Karan. Thanks for assisting up. Thank you, Thanks. sir. Thank you. Good Thank you, night, sir. everyone. And I hope everyone will do the homework. Please do the homework, and I would make sure that I help you guys out. Thank you. Take care, guys. Bye. Bye.